and looked into, capital goods calculation methodology. And we understood here is that machinery having a largest amount in the balance sheet as well as on the carbon accounting sheet should remain in focus for manufacturing company. Even for service company, you will see the equipment like laptops, servers, etc. will be the uh, uh, major, inputs. And then comes the furniture construction material. Again, three methods which you can apply is supplier specific. So machinery, mostly the supplier will provide you that data for us to take and take it forward. Then we go into furniture and fixture and construction material there. If we are talking about category three, we learn that mostly this happens in energy company, which can be fuel exploration company or energy manufacturing company like electricity manufacturing, steam, supplier company. And here, any emission which is happening apart from scope 1 and 3 in those company will be recorded under scope 3 fuel and energy related emissions, yeah, which is required to start their plant or pump to do the pump. um, there is one very nice video which, just let me see if I have to just show you that how priming of pump is essential, right? We were talking about that, isn't it? Just a minute, let me post that. There's a very short video. Of course, the video is about something else, but it do showcase to you uh, how a scope 3 emission happens. Yeah. I think I am not able to find it right now. So let's move on. But I will share with you guys. To prime the pump, you require to emit some emissions, and which is a part here. Now, mostly the activity type here is purchase electricity upstream, natural gas consumption, in MMBTU, and fuel oil and diesel in liters. These are the three data. Again, calculation remain the same. You have to take that annual kilowatt hour, which you require to start every time you are closing down your power plant, multiply by the emission factor per kilowatt hour. Or you can also take meter Q if it is a gas powered plant, and then you multiply by average emission factor of that gas. And if you have a fuel, it will be factor based of the fuel type. Is it diesel, gasoline, or kerosene? Now, when we went into scope category number 4 of upstream scope 3 emissions, which is transportation and distribution, we understood that fuel-based emissions, mostly fuel consumption uh, happening in your vehicle. And here vehicle can be anything. Give me which all kind of vehicle you think would be possibility in upstream transportation. Give me few names. Trucks. Trucks, good. Absolutely. To bring the raw material, if it is leased, not owned by you, will come here. Next. Trucks, tempos, Tempos, of course, a half ton, 1 ton tempos is part of. forklift, Sorry? forklift, Forklift, absolutely. If you are leasing a forklift, it is not owned by you, will be part of the same. Next. Railways. crane, Crane crane, also. Train, Railways. railways, absolutely can be part of it if you are, carrying coal to your plant, and that will become not used by people. People using train will be accounted separately, and your material using train could be accounted separately. Cargo, mostly cargo, right? So those are the few examples. Even cranes could be a good example. Bulldozers, if you are renting them out, it's not your core activity, it can be an example for the same. So remember, it can be anything. If it is moving, would be your crane. Mostly you must have seen installed several places, but actually it is a movable good. Okay, it's not a stationary. You can move it from different sites, and hence even that is considered. Mostly you will see here two type of databases people are using: DEFRA, USEPA,
and USEPA double EIO, which is a full form of emission factors, which we use there in spend based. Clear? Input output data, it's emission input output data, which we are referring here. Let's solve this problem. I think here we stopped last time, right? So everyone go ahead, do the calculation. Data has been provided with the emission factor and tell me the result directly. All three. I will start the chat box. Right now, I'm starting only host and co-host. You can send. Can you send it to me? So chat is disabled yet. Oh, it's still not active. Yeah. You can't send it to me. No. Okay, fine. So let me make it all. Can you try now? I have enabled, but you are not writing in. Okay, Abdul Amjad. Okay, first one I have received. So all the numbers are mostly nearby. Everyone go ahead and answer. Well, Good. So I have three people answered, Dr. Richa, Abdul Amjad, and Majar. And now we have Jyoti Aswal as well. Jyoti, your first answer need to be looked into, even second one. Okay, actually, I'm facing challenge in typing. Oh, okay, fine. Then I it's will remember.
It's a typos. Perfect. But if you understand, it's fine. So it looks like only Shraddha and Vaidyanathan ji is pending. Rest everybody's answer I have received. You have 2 minutes more to go, and then we will go back to next category. No, I have Yeah, maybe. submitted. I have submitted Yes, before Madhur. you have. Yes. Before Mazhar, you only submitted. Okay, good. Okay. Um, So, where's the lady here? Please excuse me, I'm yes. just traveling back home. So I'm trying to Oh, get to. okay. Fine. Thank you. No worry. So one observation, everyone. Upstream transportation mostly will be accurate because all methods, there are so many research has happened that all methods nearly gives the nearby number with 10 to 20% of difference in total, right? Upstream and downstream. Uh, Upper side and the lower side of the boundary is hardly 5 to 10%. Yeah, so remember that. So this number from any method you use will be not far away. And if you are getting far away, then there is a error. Clear? Now, next one is waste generated in operation. Now, this is the most beautiful aspect of the Scope 3 emission, that it also covers not only cradle to gate data in upstream, but also cradle to additionally, grave data. And that is this grave data which is going into the west. Operation from west is generally that grave data as well. So in LCA, if you have seen several LCA models, there are more than 7, 8 models. If you see in one of those, it will show that cradle to gate LCA, and then it will show one, in the circular diagram, which is a circularity, and then they will show one item going out, which is west, will be cradle to west idea, and that's how waste generated from operation becomes important. Now, what is the definition here? Very simple. It arises from third party disposal, right? Third party disposal and their treatment to the waste which we are generating as a company. So we are generating this into our process, which is a scope 1 process, right? The emission is generally that is scope 1 process. But eventually, whatever we are throwing out or the third party processor is taking out from our company premises and taking it outside and processing it. In that case, category 5 comes into play, or scope 3 emission comes into play. Clear? So if he does incineration, if a third party guy, third party waste recycler is doing burning of your waste, will it be coming into category 5? Yes. Yes. Absolutely yes, right? Because that is what their emission is, they are doing on our behalf, hence it is a scope 3 emission. Clear? Yeah. Anything, anybody
does a emission on your behalf, it is your scope 3 emission. Clarity? Right? Now, what is scope here? Both solid waste and liquid waste. Earlier, even GRI had two different waste, description. Now they have only one. So, because effluent management has totally taken out from it. So both solid and wastewater treatment is a waste generated from your operation. So whatever energy on your behalf any STP or ETP provider earlier they used to do would be calculated into your scope 3 emission. Clear? Only emission from waste which is handled by third party facility are included in scope 3. Waste treated at facility in own treatment recycling plant will be calculated under scope 1. Clear? Yes. That also is clear. Now, why? Because now you will be reusing it as raw material. Hence, you are creating that raw material for your own self, and in circularity business, scope 1 emission increases actually. Why? Overall waste reduces because circularity is concept to reduce the waste, but it increases the emission in scope 1. And what are the methods you can deploy? Again, based on the waste type, hazardous, non-hazardous, incinerated, non-incinerated, landfill, all that kind of waste type basis also, plastic, it has its own emission factors. So all that type method also you can apply. You can apply supplier specific, right? And you can apply the average data method. Average data method is more well known, and sometime research paper, national inventories, etc. provides the data, while supplier specific data come from repository like WORM, EPA, and DEFRA. Clear? Let me see if we have, okay, wait. Let me give you guys this calculation as well quickly. And now I will not wait more than 2 minutes, okay? Each of the problem has to be solved in 2 minutes. So I will just remove. Once my screen is visible, just let me know. Is my screen visible now? No. Yeah. Let me try once more. Okay, go ahead and solve this. You have 2 minutes exact. Abdul, you have a question to ask? Not a question, just one example I was about to tell in my cement plant. Now, Go ahead. Go Like, ahead. yeah. Yeah. Go ahead. Like we use alternative raw material, waste from one industry. It was a raw material for us, like a steel plant. And also this aluminum plant, they have a raw material called spent pot liners. So they used to give us as a raw material. Also, nowadays asbestos, pipes are banned in UAE. So you cannot use, for sewerage pipeline that asbestos. So they used to give it to us. Also some pharma industries waste. Also we used to incinerate. And that RDF also, that is called reduced derived fuels, made from these plastics and other type of waste. Oh, nice. So, And all yes. this used to happen in your plant. Yes, sir. Yes, we used to burn. Yeah. Oh, that's very good. Mm. And you used to give them certificate as well, how much of quantity you burned, etc. Yes. They will send us, and we used to charge also. Yes. Makes sense. Yes. Good stuff. इसमें emission factor नहीं दिया है. Oh, correct. So ask me which emission factor you want.
but you don't know the data itself, yeah. So first emission factor is 0.060. The third party waste handler has provided supplier specific में 0.60 0.6. kg carbon dioxide equivalent per kg Okay. of the waste. Second one is same amount, but here incineration factor has been provided. Third one is also same 0.60, but here it is waste treatment again. Which is rare, but in this case, actually it is. So for plastic also same value, 0.6, 0.60. all the three. And now the question comes. Good, you have asked. So let me ask the question. Yes. Why it is same? Why the emission factor remain the same? Because all are plastics only we are incinerating. Plastic only. That's only, yes. And it has the exact number. So there is no average number to be changed from region, locality, Yes. burning style, plastic is plastic. So average number remain the same. Hence, that's the number. Clear? Yes. Everybody, did you calculate it? Yes, sir. Okay. Anybody who is left behind wants 30 seconds more? एक ही कैलकुलेट करना है ना, Yes, sir. राइट? सॉरी मेरा वो पॉइंट चला गया, एक मिनट। बट मुझे एक बात पूछनी थी, ये व्हाट डू यू मीन बाय इंसिनरेशन फैक्टर? उसका तो कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। क्यों? सेकंड क्वेश्चन क्या है? वेस्ट टाइप स्पेसिफिक मेथड एनुअल प्लास्टिक वेस्ट। अच्छा, जो व्हाट इज इंसिनरेटेड यू आर सेइंग दैट इज इंसिनरेशन फैक्टर 2000। प्लास्टिक का जो इंसिनरेशन हो रहा है वही इमिशन फैक्टर है, और वो सेम है तीनों जगह, सेम स्टाइल से ही हो रहा है। सप्लायर स्पेसिफिक में भी वो बर्न करके ही आपको इमिशन फैक्टर बता रहे हैं, एवरेज डेटा में भी बर्न करके बता रहे हैं। हेंस द नंबर रिमेन द सेम फॉर ऑल थ्री कंडीशंस। क्लियर? लेकिन सप्लायर स्पेसिफिक में तो देयर इज नथिंग टू कैलकुलेट ना। They will provide you that same data. That's what it means. ओके। They will give you the data, yeah, that how much incineration has happened or how much emission they have done on your behalf. Clear? Sir, यहाँ पर supplier, why will you do incineration, sir? We are purchasing material, raw material which comes with the packaging in plastic or something. नहीं, सप्लायर स्पेसिफिक मतलब तो scope 1 में है ना सर? बिल्कुल सही, बट सप्लायर ने आपको उस प्लास्टिक का इमिशन फैक्टर दिया है। Okay, so we are calculating for scope 1. नहीं नहीं नहीं, सुनिएगा। तो अब क्या हुआ, वो स्कोप 1 का है। जो मैं प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, प्लास्टिक का मैं पैलेट्स लेके आता हूँ एंड आई मेक बाल्टी, मग्गा एक्सेट्रा, राइट? नाउ प्लास्टिक का इंसिनरेशन, मतलब प्लास्टिक का इमिशन इज मोस्टली इंसिनरेशन। देयर इज नो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक टुडे, you know that, right? There is no other way. You can't do landfill because that is the criminal offense. So you have to incinerate, and in that case they have supplied you that data. So scope 1, when you are calculating, when you are processing it and taking it to balti and magga, but there is a waste of pallet as well, right? When you are putting into the, क्या बोलते हैं, ब्लोअर में डालते हो आप, तो कुछ वेस्ट भी आता है ना कट के, वो वेस्ट का भी सेम ही मेसन फैक्टर होगा ना जो सप्लायर ने दिया है, कि दूसरा हो सकता है? Okay. मयूर जी समझ रहे हैं? तो 1 चला गया जब जी, आपका जी। प्लास्टिक का बकेट बन गया, हाँ, तो वो स्कोप 1 हो गया। बकेट का हम स्कोप 1 देंगे। सो बकेट मान लो ½ kg प्लास्टिक लिया है और 0.6 kg का उसका इमिशन फैक्टर है, kg पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इमिशन कितना हुआ एक बाल्टी का? 0.6 मल्टीप्लाई बाय ½ kg, सो ½ kg. 0.5, सो 0.3 tons of carbon dioxide or kgs of carbon dioxide equivalent per bucket is emitting. That is your scope 1. But there is a leftover per bucket.
and you are massively in a year, you are producing, say, 2000 kgs. So now you will multiply that 2000 kgs of leftover waste, multiply by same emission factor which supplier is providing you. Hence, the number remains same in all three conditions. Why? Because this material is known for its emission. There is no other way you can capitalize any other or lower its emission factor. Are you with me? Yes, तो आपने जो yes. क्वेश्चन पूछा वो भी आंसर किया और थोड़ा क्लैरिटी सबको मिली होगी, आई बिलीव, कि कहाँ पे इमिशन है. क्लियर एवरीवन? जनरली प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या होता है सर, कि जो दाने होते हैं, ग्रेन्यूल, राइट. फ्रॉम विच द प्लास्टिक कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड. वो छोटा छोटा पेलेट्स तो वही तो बोलते हैं, हाँ, व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का हाँ, होता है. हाँ, हाँ, व्हाइट है, जो भी कलर के होंगे हम्म. ना, उसके जो रनर होते हैं, जो अपना उसका जो प्रोसेस वेस्ट निकलता है, वो वापस उसको मतलब टुकड़े बना के वापस दाने के साथ मिक्स करके उसमें से ही प्रोडक्ट बनते रहते हैं. सो प्रैक्टिकली देखने जाते हैं तो फ्रॉम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्लास्टिक कंपोनेंट, द वेस्ट इज नियरली nil. Only the packaging Absolutely that comes along with this granule, the plastic dana, that we पॉसिबल. consider as the waste. पॉसिबल वो भी हो सकता है. हो सकता है आप 100% यूज कर रहे हो अपने पैलेट्स को, पॉसिबल है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. Yes, yes, right. हो सकता है कि ओवर एक ऐसा स्टेज आता है जब आप 3 टाइम उसको यूज कर लेते हो, उसके बाद वो यूज करने लायक बचता नहीं है. वो भी लोग यूज कर रहे हैं, बट वो बाल्टी और मग्गे में नहीं कर सकते हो व्हाइट, क्योंकि व्हाइट कलर का अगर आपका ट्रांसपेरेंट बाल्टी मग्गा है तो वो कभी यूज में नहीं आएगा, बिकॉज इट लूजेज इट्स क्वालिटी, राइट? इन दैट Right, कंडीशन right. यू कांट यूज इट, सो यू थ्रो इट आउट. Or you give it to some party who comes and makes something else. They make, the plastic chairs or something which has nothing to do with transparency and purity of the plastic. Hence, there might be a possibility even in your operation there is a waste getting generated after you have used twice or thrice. कुछ लोग होते हैं कि वो केवल वर्जिन पैलेट से ही काम हाँ, करते हैं, वो यूज सेकंड कर ही नहीं सकते बिकॉज उनकी इंडस्ट्री में ही अलाउड नहीं है. So in that case, they let it go to the third party, but it is your emission, which later on he might be doing it, and hence you need to consider into your documentation. Clear है? clear, clear, sir. Okay. मुझे अब्दुल का कैलकुलेशन समझ नहीं आया. What was that calculation? I didn't know. 2000 into 0.6 ना? अच्छा, इन्होंने कुछ लिखा है, अलग लिखा है. हाँ. अब्दुल बताइए भाई क्या लिखा है. तो एक एक का आएगा 1.2 टन्स 1.2 टन्स. फर्स्ट नहीं, वाले में सप्लायर स्पेसिफिक मेथड में एनुअल वेस्ट ट्रीटमेंट एमिशन ये नहीं बताया, इसको भी एज्यूम किया है कि 2000 है, तो तीनों का 1.2 1.2 हाँ. दैट इज 3.6 होगा लेकिन टोटल. वो एक ही कंसिडर होगा ना. इट्स लाइक डिफरेंट मेथड्स. डिफरेंट मेथड, एक ही आएगा, रिजल्ट एक ही जी आएगा. जी जी, रिजल्ट एक ही आएगा, करेक्ट. राइट. वो जो आप बता रहे थे ना सर, ये अभी जो बोल रहे थे, एक्चुअली जो पैलेट्स वाला एग्जांपल आप दे रहे थे, राइट. बेसिकली पहले वुडन पैलेट्स यूज करते थे, और ये जो प्लास्टिक वाला है इसका लाइफ ज़्यादा है एक्चुअली. तो और मतलब नेचर का प्रोटेक्शन भी आप कर रहे हैं यदि ये प्लास्टिक का पैलेट्स यूज कर रहे हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ डिकार्बनाइजेशन स्ट्रेटजी. ट्रू. तो गुड, यू गाइस आर लर्निंग वन स्टेप अहेड. डिकार्बोनाइजेशन आज चालू करना है मेरे को, अगर मैंने फिनिश कर दिया तो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 6th one. So business travel. Now business travel is a tricky stuff. How many of you remember one question which I have given you guys? Did I give you or didn't I? Related to अगर आपके ऑफिस का एक्सकर्सन हो रहा है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग नहीं, बोर्ड मीटिंग के साथ फन हो रहा है, यू गाइस आर गोइंग टू मॉरिशस, राइट? 3 दिन का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आपका बोर्ड आपको कराने के लिए लेके जा रहा है. अब ये बताइए वो इमिशन कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? आर यू विथ मी? Scope 3. स्कोप में ही होगा बिजनेस 3 ट्रैवल. में ही होगा सर. Sir, scope 3. Everyone, go ahead and answer first. Then the question, स्कोप 3 real क्योंकि question वो will. उसका ओन्ड है ना. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए. That is not owned and controlled by them na. They have just it has been done on their behalf. They're using it, but it's not owned or controlled by them. So it will be in scope 3 only, no? Why it is not owned?
अच्छा, you're saying it might be an owned one also. So But let me give you Mauritius one. flight थोड़ी owned होगा. कैंपस गेट से बाहर ये चला गया ना सर. कंसल्टेंसी का एक बड़ी लर्निंग आप लोगों को कंसल्टेंसी का देने जा रहा हूँ, मतलब आपको सबको इंटरेस्ट नहीं है कंसल्टेंसी में अपने लाइफ में, बट ये रिमेंबर वन वर्ड विच आई एम गोइंग टू अटर टुडे. आस्क फर्दर प्रोबिंग क्वेश्चन. इफ यू डोंट डू इट यू कैनॉट बिकम अ कंसल्टेंट. Hmm. कोई भी डेटा आपको मिले, आपका ड्यूटी है क्वेश्चन पूछो. जैसे भी कैसे कर रही है श्रद्धा, सी इज अ रियल कंसल्टेंट. कुछ भी मिले क्वेश्चन पूछो, आता है फिर भी पूछो. क्यों? क्योंकि क्लैरिटी आपको आएगी तो मिस्टेक जीरो होने के चांसेस हो जाते हैं. अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो ट्रिकी है. क्यों ट्रिकी है आप समझने की कोशिश करिए. आपने क्या बोला कि इट इज नॉट ओन और कंट्रोल. डिड आई टेल यू इट इज ओन और कंट्रोल और नॉट ओन और कंट्रोल? आई एम सेइंग अ कंपनी हैज डिसाइडेड to do a business excursion where they will be doing a brainstorming session with their all staff and while having a fun as well. You know what is the first question you should be asking me? Sir, tell me, is this a business travel or is this a operational travel? अब देखो क्या हो रहा है, 3 दिन की छुट्टी होगी ना, कोई ऑफिस में नहीं रहने वाला है. सब आदमी यहां से उठ के जाके मॉरिशस में बैठेगा, वहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा. अब ये बिजनेस ट्रैवल है या ये ऑफिस का ऑपरेशन ही शिफ्ट हो गया 3 दिनों के लिए? कितने को लगता है ये बिजनेस का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है? कितने को लगता है नहीं, ये बिजनेस ट्रैवल है? गिव मी यस एंड नो आंसर्स हियर नाउ. एवरीवन गो अहेड एंड यूज दैट. अनम्यूट योरसेल्फ. टेल यस. यस इफ इट इज अ बिजनेस ट्रैवल. नो इफ यू थिंक इट इज ऑपरेशनल. ऑपरेशनल कंपनीज ऑपरेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन. Yes. Business. Part of operation. यस मतलब यस तो हो गया बिजनेस ट्रैवल. Scope 1. या सब, किसी को लग रहा है स्कोप 1 है, किसी को लग रहा है नहीं ये स्कोप 3 है. राइट. मेरे को देखना था कितने लोग क्या बोल रहे हैं. दैट नंबर आई वांटेड. सो हैंड रेज करिए इफ यू थिंक इट इज स्कोप 1. एवरीवन. वर्चुअल भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं. इफ यू आर ऑन कैमरा यू कैन डू फिजिकल. ओके. सो मजर थिंक्स इट इज स्कोप 1. डॉक्टर रिचा सी थिंक्स इट इज स्कोप 1. 2 लोगों को ही लगता है स्कोप 1, रेस्ट ऑफ देम आर सेइंग इट इज स्कोप 3. ओके. Again ask a question. And this is, I am asking myself. Okay. You told me, sir, that they went for 3 day outside, right? To do a brainstorming session where there will be fun involved. So Yes. you tell me, is it a working day or is it a holiday? पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है. Yes, yes. Actually क्या होना चाहिए? वर्किंग डे. नहीं तो एम्प्लॉय को मजा नहीं आता है. अरे मैं घर पे बैठूंगा ना, अपनी वाइफ का चेहरा देखूंगा दिन भर. राइट. एटलीस्ट वो छुट्टी के दिन करूंगा ये काम. वर्किंग डे में तो आप 20-70 आवर मेरे से वीक में मांग रहे हो. सो ही कैन टेल यू दैट. सो आइडियली इट शुड बी वर्किंग डे, बट यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन. इज इट वर्किंग डे और डज इट ऑल्सो इंक्लूड हॉलीडेज इन दिस? सो संडे, सैटरडे, फ्राइडे, क्योंकि 3 दिन है तो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट 2 दिन वीकेंड का लेके कोई फैमिली बिजनेस कैन प्लान लाइक दैट एज वेल कि ये फैमिली, ये एक्सकर्सन आपके फन के लिए किया जा रहा है. राइट. ब्रेन स्टॉर्मिंग तो इसका पार्ट है. अब ये तीसरा क्वेश्चन आएगा. फोर्थ क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि सर ओके फाइन, आई थिंक इट इज ओनली ऑन द वर्किंग डे, राइट? अदरवाइज नो एम्प्लॉय विल शो द इंटरेस्ट. सो यू केप्ट इट ऑन वर्किंग डे. डज दिस एड वैल्यू टू माई कंपनी? Because of this, will my business will increase or decrease? अब ये जो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होते हैं इसका पर्पस कितने लोगों को मालूम है? जनरली बिजनेस प्लान के लिए करते हैं. यस मयूर जी, क्या होता है पर्पस जनरली? अनम्यूट योरसेल्फ. एक तो टीम वर्क बनाने के लिए, दूसरा होता है कि वो भाई इंटरनल कम्युनिकेशन और स्ट्रांग बनता है, और न्यू आइडियाज आर कमिंग आउट विच दैट हेल्प्स द बिजनेस ग्रो. सो मेरा चांसेस ऑफ हेल्पिंग. नया सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू चालू हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जी. इंप्रूव हो जाएगी. टीम मतलब एंड ऑफ द रिजल्ट मेरा फाइनेंस में ही आने वाला है ना. Hmm. इम्पैक्ट आएगा ना, तो मेरा फाइनेंस इंप्रूव होने वाला है. वो तो बिजनेस ट्रैवल में भी होता है सर. अब जो स्कोप 3 वाला है वो जब कूद जाएगा सर, वो बिजनेस ट्रैवल में भी वही रीजन है.
रीजन दोनों का सेम है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बिजनेस ट्रैवल का भी रीजन यही है ना, कि मैं जा रहा हूं बाहर, बाहर से नया बिजनेस लेके आऊंगा। करेक्ट। अब जो डिसाइडिंग फाइन लाइन है, और ध्यान रखिए कभी कभी स्कोप 1 एंड स्कोप 3 में डिसाइडिंग फाइन लाइन है, इज दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड एंड ओन, जो पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा था और वो खुद ही से आंसर कर रही थी कि ये मेरा ओन नहीं करती हूँ। राइट, पहला क्वेश्चन वो आना चाहिए फिफ्थ में। जब आप पूरा डिग कर चुके हो, देन यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन। नाउ यू शुड आस्क, डू आई कंट्रोल दिस प्रोसेस, डू आई ओन दिस प्रोसेस? तो ऑफ कोर्स द ट्रैवलिंग पार्ट ऑफ इट यू कांट कंट्रोल एंड ओन। तो जो ट्रैवलिंग में इमिशन हुई वो 100% बिजनेस ट्रैवल है। कितने लोगों को समझ में आया? दो पार्ट ऑफ एक्सकर्सन का है। एक है जो ट्रैवलिंग का पोर्शन है, वो आप ओन करते हो क्या? फ्लाइट, ट्रेन, बसेस, इवन दो मॉरिशस जाना है, मान लो कि बोट पे जा रहे हो, अगर ओन करते हो तो आपका इमिशन, नहीं ओन करते हो तो स्कोप 3 इमिशन। कितने लोगों को क्लैरिटी है? Yes. Sir, I have the Yes. clarity. Yes, sir. अब देखो इसमें एक कंफ्यूजन का फिर से डालू, थोड़ा सा आपको टफ कर, नहीं। तो रियल लाइफ में मतलब अपना जेट से गए तो पर्सनल स्कोप 1 हो गया। हो गया, क्लियर है। लेकिन विल आई बी टेकिंग इनटू 4 नंबर और 6 नंबर कैटेगरी? अगर आप ओन करते हो, मान लो ओन नहीं करते हो, आपने लीज ले लिया यॉट, या फ्लाइट आपने बुक कर दिया, पूरा चार्टर फ्लाइट अपनी टीम के लिए, वो स्कोप 4 में जाना चाहिए, स्कोप 6 में जाना चाहिए? कंफ्यूज हुए कैटेगरी इस 6 बात में में? आएगा सर। अच्छा, 6. स्कोप 4 में क्या रिकॉर्ड होता है? Sir, upstream transportation and distribution. रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड क्या होता है? क्वेश्चन है रिकॉर्ड क्या होता है, वो मत बताइए कि उसका नाम क्या है। नाम तो सबको हम, Fuel-based इमिशन कमिंग फ्रॉम fuel. The fuel Fuel. used in that travel लीज्ड component. व्हीकल, Upstream. Yes. लीज्ड व्हीकल अप स्ट्रीम में, लीज्ड व्हीकल अगर आपके पास है तो उसी में फ्यूल जब यूज होगा तो उस फ्यूल का कैलकुलेशन इज अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है? अब लाइफ टाइम की क्लैरिटी ले लो यहां पे। अगर एम्प्लॉय उसमें बैठ के ट्रैवल कर रहा है तो वो 6 होगा। अगर एम्प्लॉय बैठा हुआ है उस व्हीकल में और ट्रैवल कर रहा है, इट इज यूज्ड एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देन वो 6 होगा। अगर वो आपके बिजनेस को पुश करने के लिए व्हीकल यूज कर रहा है तो वो 4 होगा। Sir, can you repeat that again, please? अगर एम्प्लॉय कम्यूट के लिए यूज कर रहे हो आप, एम्प्लॉय को, आप देखो 4, 6 एंड 7 में हमेशा कंफ्यूजन होता है जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो। ठीक है, ऐसे ऑन द सरफेस लुक्स वेरी सिंपल। अभी आपने सबने आंसर करेक्ट ही किया है, लगभग स्कोप 3 ही होगा। लेकिन जो फाइन लाइन से देख रहे हो कितना डिफरेंस है, वेरी माइन्यूट डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस है? पहला पहला कि इज दिस प्रोसेस ओन्ड बाय मी? तो प्रोसेस आप लोग बोल रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन वाला डेफिनेटली नॉट ओन्ड, वहां जो काम हो रहा है वो ओन बाय मी हो रहा है। मैं मॉरिशस में बैठा हूं, हो सकता है रिजॉर्ट में बैठा हूं, राइट, वहां पे टीम बैठी है, लेकिन जो काम हो रहा है वो तो कंपनी के ऑपरेशन के लिए हो रहा है ना। वो मैं क्या दूसरे को कन्विंस करने के लिए बैठा हूं क्या वहां पे कि भाई आप मेरे को बिजनेस दो, या आप मेरा, मैं शोकेस कर रहा हूं अपना प्रोडक्ट? तो बिजनेस ट्रैवल में याद रखिएगा 2-3 चीज कॉमन आइटम है। पहला है, जब कोई बिजनेस ट्रैवल कर रहा है तो वो बिजनेस ट्रैवल इमिशन है। फॉर एग्जांपल, दे आर गोइंग फॉर ब्रिंगिंग बिजनेस, और फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस समबडी इज गोइंग एंड कन्विंसिंग दोज क्लाइंट। जैसे कि आपका सीईओ जा रहा है, आपके एम्प्लॉय गए अमेरिका, वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो जाने का जो उनका कॉस्ट है उसको हम लोग बिजनेस ट्रैवल इमिशन फैक्टर कैटेगरी नंबर 6 में डाल देंगे। सीईओ गया, जाने का जो कॉस्ट है बिजनेस ट्रैवल इमिशन नंबर 6 में डाल देंगे। होटल का बिल भी हम वहीं पे डालेंगे। क्लियर? बट अगर मैंने बिजनेस किया है और ये क्लाइंट के प्लेस पे नहीं हो रहा है, वो मेरा ही प्लेस है, फॉर दोज 3 days इट्स अ टेम्पररी सेटअप फॉर माई बिजनेस ऑपरेशन, देन इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्कोप 1। कंट्रोल आप कब करोगे? जब आप अपने प्रोसेस के लिए कर रहे हो। तो यहां पे प्रोसेस क्या है? टीम बिल्डिंग, जैसे इन्होंने बताया मयूर जी ने। यहां पे प्रोसेस क्या है? बिजनेस का एक्सपांशन। यहां पे प्रोसेस क्या है? बिजनेस में आइडिया लेके आना जिससे मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ने वाला है। तो पार्ट स्कोप 1 में जा सकता है इफ इट मीट्स फॉलोइंग क्राइटेरियाज। हाँ मयूर जी, आपका आंसर ले लेता हूं फिर। आप बोल दीजिए, चलिए कोई नहीं, बोलिए।
हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि जो एग्जीबिशंस वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने वो बताया आपको कि एग्जीबिशन इज अ कॉमन हाँ। वन। एग्जीबिशन आप जब भी जाओगे अपना कंपनी का शोकेस करने के लिए, तो बिजनेस ट्रैवल ही हुआ ना। कोई एम्प्लॉय भी यस। जाता है, यहाँ पे आप 500 लोग उस प्रीमाइस में आ रहे हैं और आपका एग्जीबिशन देख रहे हैं। आप क्या करते हो, 500 लोगों का अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो, आप जाके उनको मिलते हो। जो ये ट्रैवल का एक्सपेंसेस है, लॉजिंग एक्सपेंसेस है या इमिशंस है, वो सारे इमिशंस हमारे बिजनेस ट्रैवल में आ जाएंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है। डाउट कहां पैदा होता है, जब कंपनी का ऑपरेशन हो रहा है, देयर इज नो मार्केटिंग एफर्ट। ऑपरेशन ही है ना ये। टीम बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन, एचआर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन, राइट? नेक्स्ट ईयर का बिजनेस प्लान इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन, कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या बजट करें, कैसे बजट करें, इंक्रीमेंटल करें, जीरो बेस्ड करें। वो सारा डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन। इट कैन हैपन इन माई ऑफिस, बट द कंपनी डिसाइडेड आई वांट टू गिव अ ब्रीदिंग स्पेस फॉर माई एम्प्लॉय and help them to interact other 2-3 purposes which Mayur ji was talking about, right? So वो मिक्स करते हैं और वो लेके जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें भी आपको चेक करना है कौन सा प्रोसेस मैं ओन एंड कंट्रोल कर रहा हूं और कौन सा प्रोसेस आई कैन नॉट ओन एंड कंट्रोल। तो जो डिस्कशंस हो रहे हैं, अगर वो डिस्कशंस बिजनेस ऑपरेशन को ओन कर, मतलब बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है, जैसे बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, टीम बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑपरेशन। कितने लोगों को लगता है एचआर एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, और कितने Yes. लोग थिंक करते हैं कि ये बकवास काम है, ये क्या ये लोग गेम कराते हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? या They're सबको part of नहीं, कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि एचआर फाइनेंस ये सब यूजलेस डिपार्टमेंट, केवल मार्केटिंग होना चाहिए और एक आदमी उधर काम करने वाला होना चाहिए, बस। मुझे लगता है सर कभी कभी। हाँ, क्योंकि आप ओनर हो, देखो ये प्रॉब्लम है ओनर्स के। ये प्रॉब्लम है ओनर्स के, या entrepreneur थिंक्स लाइक दैट, स्पेसिफिकली द फैमिली बिजनेसेस, एंड दैट्स छोटे व्हाई। ऑर्गेनाइजेशन में एचआर, एडमिन, आईटी सब एक ही तब बंदे होते हैं। बट आप करते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉय को हैप्पी नहीं करो, उसको जाके शाम में बड़ा पाव नहीं खिलाओ उसके साथ और एक चाय नहीं पियो, इवन दो यू नेवर ड्रिंक इन योर लाइफ, बट इफ यू डोंट ड्रिंक विद दैट एम्प्लॉय ही विल नॉट कम टुमारो, ट्रस्ट मी। दे आर सो शार्प नाउ इट इज एंड सो मच डिमांडेड। क्लियर है कि नहीं है? उनको बहुत ऑप्शन है, तो आपको यस, उनके यस। साथ बैठना होता है, सुट्टा लगाना होता है, ब्रेक लेने होते हैं। एंड वी डू इट एज ए एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिकली, जो जैसा है उसके हिसाब से उसके साथ बैठते हैं हम लोग। या वो लेकिन आपको करना पड़ता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अजय है। आपको लगता है कि सब वेस्ट काम है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपके पास एम्प्लॉय नहीं टिकेगा, इफिशियंसी नहीं आएगी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। जो कि आप हायर करते हो एक बंदे को या बंदी को जो एचआर का वही काम के लिए, वो बाद में समझ में आता है, इनिशियली उतना पैसा ही नहीं कि आप 50 करो। आप ऐसे अपना पॉइंट बोल ही दीजिए, जब हाथ रेंज किए आप नहीं करोगे तो आप थैंक यू बोलिए, सर। आपको कन्विंस करते हैं। सो नहीं, उसके बाद ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा मैं। इट इज ए पार्ट ऑफ कंपनी। सो सर, अगर हम कम मतलब टीम बिल्डिंग के लिए या बजट रिपोर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, फिर भी वो स्कोप 1 में आ जाएगा तब ना? हाँ, वो पार्ट, कौन सा पार्ट? ओके। जो काम हो रहा है वहां पे, तो जो इमिशन उस काम के लिए हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली दिन भर या होटल होटल बुक चार्ज। मैंने किया, तो होटल बुक का रेंट, ये पार्ट चला जाएगा स्कोप 1 में, इफ इट इज माय नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये गए हम केवल फन के लिए, मतलब टीम बिल्डिंग कर रहे हैं बट प्योर फन है उसमें। सबको एक रिलैक्सेशन है कि आपको बस 5 घंटे आने हैं इस एक्टिविटी के लिए, रेस्ट ऑफ इट व्हाट यू डू आई डोंट केयर, राइट? अपना होटल राइट। बुक करो, आप क्लेम करो, तो वो डायरेक्टली बिजनेस ट्रैवल में चला जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कंट्रोल कम हो गया ना, लेकिन आपने हम्म। रिसॉर्ट में रखा, सुबह में भी एक्टिविटी, शाम में भी एक्टिविटी, रात की एक्टिविटी। आपने तो टीम बिल्डिंग पूरा सोच के रखा है कि इसको तो मतलब अगले 20 साल तक के लिए वो छोड़नी नहीं चाहिए मेरी कंपनी, राइट? राइट, राइट। तो अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, देन ओनली इट विल बिकम बिजनेस, इट विल बिकम स्कोप 1। इफ यू कांट कंट्रोल बियॉन्ड 5 आवर्स, इट विल बिकम स्कोप 3। तो थोड़ा इंक्लूडिंग एयर ट्रेवल। हाँ, इंक्लूडिंग एयर नहीं ट्रेवल नहीं, ट्रैवल तो, ट्रैवल के लिए मैंने आपको दूसरा डिबेट लेके गया था, वो 4 और 6 एंड 7 में है, राइट? 4 से उसका डिबेट ओके। है, उसका डिबेट स्कोप 1 से नहीं है, उसका डिबेट ओके। 4 से है, स्कोप 4 से है। तो वो रियल लाइफ का था, इसलिए थोड़ा सा और मेसी कर दिया। एक्सक्यूज करिएगा, इतना मेसी पहले टाइम में कोई नहीं पढ़ता है, वो प्रैक्टिस से ही आता है। बट मैंने इसलिए किया कि आप वो देख लो, पॉसिबिलिटी है 4 से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि 4 में क्या होता है? 4 क्या है अजय जी?
और सर मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन। ओके। अगर लीज व्हीकल की अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन। अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, लीज व्हीकल में जो पेट्रोल लगा वो पेट्रोल का कितना इमिशन। राइट। अब ये लीज व्हीकल है आप ट्रीट कर रहे हो कि बिजनेस ट्रैवल का व्हीकल आप ट्रीट कर रहे हो, ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही मैं डिसाइड डिसाइड करोगे ना। करूँ ये या। कंटेक्स्ट डिसाइड करेगा, आप करो राइट राइट। थ्रू कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है? इफ दिस एक्टिविटी is happening because I am controlling an activity, right? Did I give them a freedom to choose or did I नो। block them? ओके दैट विल डिसाइड। That राइट will decide. अगर फ्रीडम है राइट। कि फ्लाइट से जाना है, सब कोई अपना अपना फ्लाइट ले सकता है, बट ये टाइम पे 100% सबने मिलना है। अगर मैंने बुक कर दिया तो चैलेंज हो सकता है कि ऑडिट ट्रेल में मैं फंस जाऊं कि फोर्थ में होना चाहिए कि सिक्स में होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मेरे ही जेट से लोग जा रहे हैं, तो दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज। तो थोड़ा फाइन लाइन है और अभी क्लैरिटी नहीं है इस पे। अगर कोई क्लेम कर रहा है ओके। कि नहीं 100% लिखा हुआ है बुक में, तो वो भी गलत है। कोई लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो राइट। थोड़ी सी एंड यहाँ पर, एंड सॉरी सर। या बोले बोले बोले। एंड इफ वी आर गोइंग आउटसाइड साइड फॉर द ऑडिट दैट विल कम्स अंडर द डेफिनेट आउटसाइड, राइट। आउटसाइड मतलब अपने ही दूसरे साइट पे ऑडिट के लिए जा रहे हैं दैट विल वो तो कम्स अंडर द स्कोप इन। स्कोप वन राइट है, स्कोप थ्री राइट का। राइट वो तो स्कोप वन हो गया ना, वो ट्रैवल राइट अगर आप राइट। कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट है, या एम्प्लॉय कम्यूट बोल सकते हैं उसको अगर चाहिए तो इट्स इसको। इट्स अ मैनेजमेंट प्लान। आई गॉट इट सर, थैंक यू। Clear? Now, sixth one is clear. Anybody has any question? Shraddha has a question. Okay. ये आप कह तो रहे हैं कि हम इसको बाइफरकेट करेंगे, लेकिन जैसे मैं अपना बजट बनाती थी मेरे डिपार्टमेंट का, तो हम्म मैं ट्रैवलिंग को ऐसे सेग्रीगेट नहीं करती थी कि मुझे फ्लाइट के इतने लगेंगे, लॉजिंग का इतना लगेगा, या वहाँ के लिए इतना लगेगा। इट्स हम्म लाइक like even if when we are putting into the portal for reimbursement, though it comes into different categories, but is to come into business travel expense. तो मैं ये डेटा लूंगी कैसे? अगर मुझे किसी से किसी कंपनी के लिए करना है, तो मैं उनसे लूंगी कैसे ये बाइफरकेशन? Just a minute. Let me stop this. Yeah. आप फिर से बोलिएगा कौन सा डेटा आप कहाँ से लेंगे? ये आप तो अगर अगर बजट बजट के लिए निकाल रहे हो। हाँ, सपोज मैं if I budget like off-site travel, okay, हम्म that's हम्म the thing, and I'm considering $50,000 inclusive of the flight, the lodging, and all that, everything. हम्म Now, suppose when the employee is filling into the portal for the reimbursement for a company, they will maybe segregating it into like maybe bus travel or what flight travel and lodging and everything. हाँ But then the whole head comes under the business travel expense. But now, as a consultant, if I have to take and categorize and make their report, but how can I get that segregation from them? It's very difficult to get that, right? no. आई एम नॉट सेइंग दैट यू सेग्रीगेट एवरी बिजनेस ट्रैवल। मैंने क्या सेग्रीगेट करने की बात करी? द मोटो ऑफ दैट बिजनेस ट्रैवल। व्हाट इज द मोटो हियर? Is this motto is for the brainstorming purpose or increasing revenue? Means it's your work which you are supposed to do in the campus. Now you are doing in another campus. जैसे कि अभी ये बात कर रहे थे ना, क्या अजय नाम, जी। अजय जी बोल रहे थे कि मेरे को दूसरे कैंपस में जाने का है। तो हम्म वो तो आपका दूसरा कैंपस में आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आप काम कर रहे हो। ये दोनों आपका ही कैंपस है, बट दोनों का रेंट अलग अलग जाता होगा। करेक्ट? अगर रेंट आप, राइट। कॉस्ट सेंटर अलग अलग रहता है। हाँ 100% ना, हर एक सिटी में एक ऑफिस होगी या आपकी, तो वो ब्रांच का इमिशन इज स्कोप टू इमिशन रेंटल एग्रीमेंट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की इमिशन की बात करोगे तो वो स्कोप टू का इमिशन है, राइट, ऑफ बोथ कैंपसेस। लेकिन यहाँ पे ट्रबल कहाँ है कि अगर ये बिजनेस ट्रैवल है, यू आर थिंकिंग इट इज बिजनेस ट्रैवल बट अरेंज बाय द कंपनी फॉर द कंपनीज वर्क, not for the fun or not for the business development. So those things you have to remove, right? For the work which they were supposed to do in our campus headquarter, but they decided to do in Mauritius, तब चैलेंज आता है। सो बिजनेस एक्सकर्सन इसका नाम दिया जाता है, ये बिजनेस ट्रैवल है ही नहीं, ये एक्सकर्सन है। नाउ इस एक्सकर्सन में डू आई कंट्रोल दिस ऑपरेशन और नॉट? यस आई ऑपरेट। क्योंकि अगर बस्टिंग में वहां मॉरिशस में नहीं करता, यहाँ पे बैठ के एक महीना लोग लगाते हैं। क्यों लोग जाते हैं एक्सकर्सन के लिए? बहुत दिमाग वाले होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। वो एक दिन में सारा काम करवा के ले लेते हैं उस दिन आपसे बिठा के। आपको लगता नहीं ये तो फन हो रहा है, राइट?
वो नहीं तो आपको अगर वो लोग लेटर भेजेंगे ना तो आप एक महीना उसको लेके बैठोगे, सर जीरो लगाऊं इंक्रीमेंटल लगाऊं, सर समझ में नहीं आ रहा है कितना बिजनेस होगा, राइट। हर एक दिन आके 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, वो कंसल्टेंट बन जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, उन सबको उठाते हैं एक जगह जाके बिठाते हैं, 3 दिन में सारा काम कंप्लीट करा के वापस आ जाते हैं, काम चालू हो गया नेक्स्ट ईयर का। सो इफ दैट इज द प्रोसेस, देन यू हैव अ डिबेट, अदरवाइज देर इज नो डिबेट, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस बिजनेस ट्रैवल। जो आप बोल रहे हो ना, सीधा वो मल्टीप्लाई कर देना, इमिशन फैक्टर ऑफ ट्रैवल, इमिशन फैक्टर ऑफ होटल रेंटिंग, लॉजिंग, राइट, एंड यू आर डन विद द डील। बट इफ दैट इज नॉट द केस, then you have to decide whether it is category 4, category 7, yeah, scope 1, right? The debate you have understood, clear or not? Debate I have understood. I'm just wondering how will I get the data? And why डेटा यू can't I तो just report वेरी under सिंपल ना, scope 3? आपको पर्पस देखना है उस काम का, पर्पस। बिजनेस ट्रैवल है, लेकिन काम तो आपको मालूम है ना कि बिजनेस ट्रैवल में क्या काम हुआ वहां पे जाके, तो बताएगा फिर कि भी मैं। अगर सारे स्कोप 3 में ही आ जाते हैं तो इज इट रियली नेसेसरी दैट आई ब्रेक डाउन अगेन इनटू 1 2 3 4 5 6 यस, कैटेगरी? यस, फिर आप फोकस करोगे ना नेक्स्ट ईयर की, एक्सकर्सन इज वेरी कॉस्टली फॉर मी ऑन द कार्बन अकाउंटिंग फ्रंट। Hmm, Are you understood. getting that is how it works. Yeah, and I started our scope 3 with that only, that why we need category, so that you can pinpoint, laser focus on that activity, reduce your emission. Then only you will have a effective decarbonization plan. Clear? Yeah, very चल, clear. अजय Thanks. जी फिर से क्वेश्चन। Sir, I was clear, but because of Shraddha ji, I am again अरे यार having the क्या different वो confusion, you कंफ्यूज know. कहाँ की है? Sir, चलिए पूछिए if I am going to the other site, other same company site, doing the development, anything like that, audit or something. So whatever the electricity I am using at the different site, वो तो उसका स्कोप 2 हो गया, और हम अभी बात कर रहे थे कि वो हमारा स्कोप 1 हो गया, तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगा ना सर, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल टू वगैरह का का। बात जो मैंने करा, मिक्स नहीं कर रही है आप, मिक्स कर दिए। मिक्स नहीं करिए, मैंने बोला कि अगर 2 ब्रांचेज हैं आपके, राइट, इमिशन कहाँ है ब्रांचेज में? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी का, यस। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा इमिशन होता है? 2, खत्म हो गई बात अगर ना। पावर प्लांट अंदर नहीं है तो। हाँ हाँ, नहीं तो 1 या 2, तो 3 का तो डिस्कशन ही नहीं ना। ये तो ओके, डिस्कशन में नहीं है। डिस्कशन में कहा है कि जिस बंदे ने ट्रैवल किया यहाँ से वहां, वो किस कैटेगरी में लॉग होगा, बिजनेस ट्रैवल में होगा, एम्प्लॉय कम्यूट में होगा, ट्रांसपोर्टेशन अप स्ट्रीम में होगा, कहा, वो डिस्कशन एंड डिबेट है। दैट इज ओके, स्कोप 3 डिस्कशन डिबेट, राइट। उस प्लांट में एक ओके, बार बैठ गया तो उस प्लांट का इमिशन स्कोप 2 ये इमिशन। वो तो आ ही जाएगा। गॉट इट सर, बिल्कुल गॉट इट, क्लियर। गॉट इट, या। ट्रबल है एक्सकर्सन के साथ, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा ट्रबल है, और उस पर कोई क्लैरिटी अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई, हुई होगी तो मुझे मालूम नहीं, कोई सर्कुलर आया होगा, बट आई हैव नॉट सीन दैट सर्कुलर, बिकॉज दिस हैज बीन रेज सेवरल टाइम, राइट। दैट अब मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ, इस पर क्लैरिटी नहीं है एक्सकर्सन स्पेसिफिकली। क्या होता है सर? एक्सकर्सन घूमने के लिए गए, बच्चों का जाता है ना एक्सकर्सन, ओके, तो घूमने के लिए गए बिजनेस। क्या मयूर जी आप म्यूट पे हैं? पिकनिक पिकनिक। पिकनिक, हाँ पिकनिक, पिकनिक, ओके, ओके, स्कूल वाले ओके लेके सर, जाते हैं। चलिए, गॉट so इट। now that is clear. So business travel, a employee going out of the firm, whatever emission he is making, he will record into business travel. Clear? Fuel based method is ideal if you get the fuel data used into your jet, used into your airline, used into your train. That's the best data you should have, the amount of fuel used for your travel purposes. If you don't have, then distance based method, how many kilometers you have traveled for this purposes, right? And it is available most of the time. This is the easiest data available. एंड मोस्ट अवेलेबल डेटा इज स्पेन बेस्ड। आपको टिकट का वैल्यू मालूम है, आपका ट्रांसपोर्ट वाले को भी टिकट का वैल्यू मालूम है, ही कैन सप्लाई यू, विच इज लो complexity data. Emission factor generally here DEFRA, USEPA, and now you will find everywhere USEPA, DEFRA, and IPCC data remains common as a emission factor provider, right? Category 5 हो गया। एम्प्लॉय कम्यूट पे नहीं, एम्प्लॉय कम्यूट, चलिए एम्प्लॉय कम्यूट का कैलकुलेशन करते हैं क्विकली। 3 मेथड है एवरीवन, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और अब थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा मैं, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट टुडे decarbonization. Okay, so we will have a time for debate after 2 day
there will be a debate session, which is not a debate, it's a role play session. So everybody, there will be group divided, and everybody will take one position in those 4 positions which are available. I need 2 people who can do good research. Volunteers, 2 volunteer I need. They will be also part of the role play, but they won't have to prepare with me the case. So who 2 people are available who can spend half an hour next 2 days? So we'll have an additional session with you guys. Okay, as Majher has volunteered himself. पार्थ, स्मृति, ओके, चलिए 3 आदमी ठीक है, डन है। आप तीनों ने क्या करना है, हाफ एन आवर के लिए कनेक्ट करना है मेरे से कल। What we will do is we will decide and before that if possible spend 10-20 minutes and find out 3 burning cases related to environment, social and governance in India today. 3 burning cases: environmental, social and governance. We will be selecting only the governance one, environmental one. So controversy, जैसे पिछले बैच ने, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं आप तीनों को, कि पिछले बैच ने सेलेक्ट किया था अडानी वर्सेस धारावी डेवलपमेंट। अडानी का धारावी डेवलपमेंट हो रहा है, वो लोग लो कॉस्ट हाउसिंग बना रहे हैं। सो इसे जस्ट ट्रांजिशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है एंड ह्यूज कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट रोल्स हैं विच पीपल विल बी प्लेइंग इन द ग्रुप। सो एक रोल है उसमें विच विल बी इन्वायरमेंटलिस्ट. So people, there will be 3-4 people who will be acting like an environmentalist, right? तो वो लोग डिबेट में उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करके आएंगे. जो अनदर ग्रुप है, द सेकंड ग्रुप इज ब्यूरोक्रेट, who is mayor, who can be, that city secretariat head of Ministry of Environmental, but he is a government official who will be representing the government of India or government of Maharashtra, government of Chhattisgarh, whichever city we will select, that city, he is a head government representative. He's a IAS basically, right? That's a second role. The third role will be a person who is representing that company. So this has to be organization based issue. The issue which you will be finding, it has to have an organization who is embroiled in this controversy. So he will be the CEO of that company or CSO of that company. So that's the third role. And the fourth role which we have will be coming from, कितने लोग हैं हमारे पास? 15 लोग हैं, राइट? नहीं, आते तो 10 या 12 ही है। सो एज्यूम करो कि 12 आएंगे उस दिन भी। तो एक और रोल कौन सा था हमारा? Okay, we will see that as well. That's why I want to start today decarbonization. So you guys can search for this kind of controversy where all 4 players can operate, or 4 players. Have you understood all the job responsibility? So you need to find a case where all these 4 people can interact. और आप लोग 3 आदमी हैं तो सब आदमी 3-3 केस लेके आएंगे जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और उस पर रिसर्च करना आसान है, ये भी आपको सोचना है। ऐसा टॉपिक नहीं लेके आना है कि उसका कुछ डेटा ही नहीं मिले, राइट? तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ऑलरेडी 2 लास्ट 2 सेशन में कवर करा दिए हैं। एक है छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट देयर इज अ कंट्रोवर्सी ऑफ पावर प्लांट देयर इन छत्तीसगढ़. Okay, that we have covered. And second one we have covered is from with cohort 10 was this Dharavi redevelopment plan. अब आप लोगों को नया लेके आना है, 3-3 ईच पर्सन लेके आएंगे. Ideally it should be environment related, but if it is social and governance related, then definitely these 4 people have a role to play. ठीक है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है कि वो क्या कैसे डिफेंड कर रहे हैं. क्लैरिटी है? पार्थ, मजर एंड स्मृति, ठीक है. और फिर हम लोग 10 मिनट के लिए कल कनेक्ट करेंगे या आधे घंटे के लिए, और हम लोग अपने में डिसाइड कर लेंगे कि विच टॉपिक एंड व्हाई वी शुड सेलेक्ट फॉर द टीम टू कंट्रीब्यूट. क्लियर? टाइम डिसाइड करके कर लेंगे वो. Yes, कितने sir. लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया? मेरा तो तीसरा बहुत ज्यादा आ गया, 320 आ गया. ओके, तो लिखिए चैट बॉक्स में. लिख दिया सर, बट मजहर का देख के सोच रहा हूँ डिलीट कर दूं क्या. दूसरे का देख के क्यों कर रहा है? वो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो पहले. अरे हाँ, मेरा ही जल्दी मैंने क्लियर नहीं देखा.
देखा, तो कभी कभी अजय अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए सम टाइम सीखने को इवन। मिलता है सर, जो भी कॉम्पिटेंट है वो तो। मैं सर की बातों पे फोकस करो तो ये छोड़ दिया, सॉरी मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे लर्निंग आप लोग देख रहे हो क्या है, क्या लर्निंग है, यस, बोलिए क्या लर्निंग। एवरेज डाटा इज टू हाई। एवरेज टू डाटा हाई। बहुत ज्यादा है, टू हाई। मतलब हाई तो 20 गुना 10 गुना से भी ज्यादा है, 10 गुना 15 गुना, 15 टाइम्स फ्रॉम सेकेंड वन डिस्टेंस। एंड द फर्स्ट वन फ्यूल बेस्ड से तो बस जोड़ने लायक ही नहीं है, 4 40 पता नहीं कितने टाइम्स हाई है। So 100 times and nearly 80 to 100 times. हाँ। Why I have given you this? Because this is the reality. हम्म। Employee, and that is why there is a lot of debates are going on. मैंने आपको दिखाया था एक पर्पल कलर का ग्राफ फर्स्ट सेशन में, राइट, दैट विच ऑल आर नॉट गेटिंग रिपोर्टेड इन इंडिया, एंड मोस्टली एम्प्लॉय कम्यूट, business travel, processing of the material, process, business processes. These are few which are not getting reported because of this reason. बिकॉज इंडिया में पहला बात तो स्पेंड बेस्ड डेटा ही नहीं है, एवरेज डेटा है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। यस स्मृति। तो ये एम्प्लॉय कम्यूट एमिशंस पे मैंने थोड़ा सा पहले काम किया था अंडर यूएसजीसी गाइडलाइंस, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सबमिशन करने पड़ते हैं कि कौन से एम्प्लॉय कितना कम्यूट किया। जैसे यहाँ पे भी फ्यूल बेस्ड करेक्ट। मेथड है यस। एंड डिस्टेंस जीसी बेस्ड भी गाइडलाइन यू है। आर सेइंग, यूएनजीसी ग्लोबल कॉम्पैक्ट नहीं गाइडलाइंस, नहीं, राइट। यूएसजीबीसी, यूएस ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन में, हाँ, सर्टिफिकेशन। यूएसजीबीसी या जीआरईबी उसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, राइट, जीआरएस। जीआरआई, जीआरआई तो ग्लोबली है। अगर कोई ग्रीन बिल्डिंग यूएसजीबीसी कंप्लायंट होना चाहता है तो हाँ वो कर मतलब सकते हैं, लीड, या वर्ल्ड, हाँ, या फिर लीड वर्ल्ड वाला, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के हिसाब से। राइट। अ, और जैसे कि हमारे इंडिया में आईजीबीसी है। सो करेक्ट। उसमें लेकिन हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि जैसे कुछ एम्प्लॉयज उस टाइम पे इंक्लूडिंग मी, हम लोग, जैसे मैं कुछ डिस्टेंस मेट्रो से ट्रैवल करती थी एंड देन बाप रे। सम डिस्टेंस थ्रू शटल। मतलब शटल तो क्या उस टाइम, मतलब इलेक्ट्रिक शटल भी मिल जाता था, लेकिन ऑटो मिलते थे, रिक्शा। बिल्कुल। सो वो कैलकुलेट करना पर इंडिविजुअल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो शेयरिंग भी होती थी। एंड ऐसे काफी सारे एम्प्लॉयज का हर डे का कम्यूट ऐसे मतलब इस तरीके के फॉर्मेट में हमेशा नहीं आता था। कभी कभी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ले तो फिर उसका कैसे कैलकुलेट करे। कुछ लोग डायरेक्ट आते थे, मतलब बसेस चेंज करके बहुत दूर से आते थे। सो वो थोड़ा सा मुझे डाइसी एंड कॉम्प्लेक्स लगता है व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड मतलब कंजम्पशन एंड एमिशंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड कम्यूटेशन। ये मुझे लगता नहीं है कि कभी भी एक्यूरेट आता है, पर हम क्योंकि प्लाक में वी यूज टू एंटर डेटा मैनुअली पहले, बिफोर इट गॉट ऑटोमेटेड, तो हम एवरेज आउट करके डालते थे। सो राइट। ओ, वो एवरेज चीज आउट थी। का, अब ये बताइए स्मृति, एवरेज आउट का मैं ऑडिट कैसे करूंगा। So, वही तो, दिस इज द डाइसी पार्ट। आ, यस। इसीलिए वो डाइसी है, इसीलिए मैंने आपको बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में लेके जा रहा हूं। तो पहले मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया, अब आप देख रहे हो कि बहुत वैलिड डेटा है, एंड somebody who has experience is sharing, and now let's listen from Mayur as well, and then I will give you the solution. Okay, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपको, आप जाके जब वो लिखोगे डेटा तो लीड वाले आपके पास आके पूछेंगे कैसे आपको पता चला। एनीवे, लेट्स टेक फ्रॉम मयूर जी एक्सपीरियंस एज वेल। सर सोल्यूशन। जनरली जनरली इनका एवरेज मतलब जो स्पेंड बेस्ड डेटा है, हाँ, वो लिया जाता है सर। बिल्कुल। एवरी एम्प्लॉय स्पेंड बेस्ड डेटा, जैसे बट मैडम ने का, कहा। हाँ। मयूर नहीं, मयूर जी उसमें चैलेंज कहाँ है, आप ध्यान दीजिएगा। मेट्रो वर्सेस लोकल, स्पेंड बेस मैच करेगा क्या? नहीं मेट्रो सर, वर्सेस ऑटो, स्पेंड बेस में सर, सेम किलोमीटर ट्रैवल, यस। ऑटो, सेल्फ ड्रिवन कार वर्सेस ऑटो, मैच करेगा क्या? तो चैलेंज रहने वाला है। तो हाँ, इसके चैलेंज रहता है सर, बिकॉज वी कैनॉट कंपेयर विद डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट। सो एम्प्लॉय बेस्ड, अगर वो घर से निकल के ऑफिस या फैक्ट्री पे जाता है एंड टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो एवरेज वी हैव टू, दिस इज स्पेंड बेस्ड होता है कि वो महीने में कितना स्पेंड कर रहा है।
बट वो एवरेज आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। नहीं चैलेंज कर रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि कोई एम्प्लॉय के पास अगर जाके उसने टेस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया और आपने लिख भी दिया ऊपर से नीचे तक कि कुछ लोग ये मेट्रो से आ रहे हैं, कुछ लोग लोकल ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ लोग ऑटो से आ रहे हैं, कुछ लोग, और वो जाके 2 सैंपल साइज उठा लिया उसने अपने टेस्टिंग के लिए ऑडिट में, राइट, ही विल फाइंड आउट कि नहीं ये तो 25 मोड लेके आ रहा है बंदा को, ये जो रिपोर्ट में एवरेज लिखा है वो सही नहीं है। तो उसके राइट। 3 सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, 3 सॉल्यूशंस आर देयर, देयर इज नो क्लियर कट आंसर, दैट्स व्हाई इन इंडिया इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इंडिया में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे पास जियो स्पेशियल स्टडी भी नहीं है। somebody is trying to answer. Geo is okay. Dr. Deepa has answered. Geospatial study is the solution for this. जो लार्ज सिटीज हैं उनके पास है, मुंबई के पास बाय द वे है, वहां पे एक एवरेज नंबर है जो बताता है कि ईच एम्प्लॉय, इररेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ काम कर रहा है कहाँ रह रहा है, ऑन एन एवरेज इज ट्रैवलिंग इज 40 किलोमीटर। ये एक डेटा अवेलेबल है। ऐसे लार्ज सिटी के लिए वो डेटा अवेलेबल है जो वो सिटी और सिटी काउंसिल कराती है। तो डिबेट में याद रखना आप लोग, ये भी पॉइंट यूज कर सकते हो, ये सब डिफेंस पॉइंट होते हैं ना। सो ये डेटा अगर सिटी करा रही है तो ये इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज दे कैन स्टैंडर्डाइज देयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। 40 किलोमीटर, अगर आपको मालूम चला कि 30% जनता ऐसे मिक्स ट्रांसपोर्ट पे आ रही है, 20% जनता, आप ये तो नंबर निकाल ही सकते हो ना। चैलेंज याद रखिएगा छोटी कंपनियों के साथ नहीं, बड़ी कंपनियों के साथ है, जहां 4,000 एम्प्लॉय है। तो वहां पे लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा, वहां पे लॉ ऑफ एवरेज वर्क कर जाएगा जो आप बता रहे हो मयूर जी। क्यों? क्योंकि कुछ यस। लोग ऐसे होंगे जो मिक्स कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे लोकल ले रहे होंगे, और वो परसेंटेज निकल जाएगा और मैं अप्लाई कर सकता हूँ। छोटी कंपनी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कि वहां तो हाँ। 5 एम्प्लॉय है, अगर उसमें से 2 आदमी भी ले लिया तो आपका समझ लो 30% 50% एक डिफरेंट मोड से ही आ रहा है। तो इसमें 3 सॉल्यूशन जो अवेलेबल है मार्केट में, पहला है जियो स्पेशियल स्टडी। Ideally, research documents on the mode of transportation and employee commute and their emission. If there is a research, rely on it. अगर उसका पीयर रिव्यू सब्सटैंशियल नंबर पे है, स्प्रिंगर पे छपा हुआ है, मतलब क्रेडिबल है, अगर रिसर्च क्रेडिबल है और जियो स्पेशियल स्टडी गवर्नमेंट ने कराई हुई है तो आप उसको रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो। सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन इज लॉग बुक्स। आपने, अब पिछले साल का तो आप नहीं कर पाओगे कभी भी, ये हाइंडसाइट में नहीं होता, ये फ्यूचरिस्टिक है, लॉग बुक इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। तो आपको क्या चेक करना है कि कितने लोग अपने व्हीकल से आ रहे हैं, राइट, कितने लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं, मिक्स ट्रांसपोर्ट, कितने लोग एक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, और कितने लोग कहां से आ रहे हैं। ये डेटा का आपको एक ट्रायंगुलेशन बोल रहा हूं यहां पे, तो आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ये प्रॉपर डेटा आपके पास होना चाहिए कि कितना एक एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का ट्रैवल डिस्टेंस कितना है। अब उसमें भी चक्कर हो सकता है, स्मृति बोल सकते हैं कुछ लोग यहाँ रहता है, कुछ लोग कभी कभी अपने फैमिली पेरेंट के जी साथ रहता सर। है। सर हम लोग बेल कर्व बनाते थे बेल का बनाता है, फॉर बिल्कुल, परसेंटाइल, क्योंकि राइट, परसेंटेज में इस पे होगा नहीं, तो परसेंटाइल ही हम करते थे ताकि एक मतलब थोड़ा बेटर एक्यूरेसी उस, मिल जाए, हाँ, क्योंकि वो फिर सारी चीजें आसपास ही होती है, सारे डॉट्स बिल्कुल। और इंक्लूडिंग बेलकम हमेशा आउटलायर्स। करेक्ट होता है, बेलकम हमेशा करेक्ट होता है, राइट। 0.67% फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी विल फाइंड यू 67% ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग देयर। यस। केवल आउटलायर्स का ही प्रॉब्लम होता है, वो 97% एक्यूरेसी के बाद आती है, राइट। सो वो दे आर एनीवे 2 सिग्मा हेड, 2 सिग्मा के बाद आप नहीं कंसिडर कर सकते हो, तो वो आउटलायर है, उनका आप बड़ा नंबर लेके क्लोज कर दो। वन जी। परसेंट 3% तक जाते हैं। तो ऑल दोज आर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उस सिस्टम में इनबिल्ट आता है, और जिस दिन आप डिसाइड करोगे कैलकुलेट कर लोगे। तो ये सेकंड है, लॉग बुक बेस्ड, इस बेल कर्व लगा के, दोनों में बेल कर्व लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड एंड चीपेस्ट मेथड। लार्ज कंपनी पे भी अप्लाई होता है, छोटी कंपनी में भी अप्लाई होता है। वो क्या है? एसओपी, जो कि हम लोग आगे अभी डाउन स्ट्रीम में पढ़ने जा रहे हैं। जो आपको याद है शैम्पू बॉटल वाला कहानी, यूनिलीवर का,
कि कितने लोग हॉट वाटर यूज कर रहे हैं, कितने कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, कैसे मालूम चलेगी कंपनी को? कभी नहीं मालूम चल सकती। तो वो क्या बोलता है, वो उसने खुद का एक प्रोसेस लगा के दे दिया, लैपटॉप के साथ, टॉर्च के साथ, मोबाइल के साथ, कि आपको ऐसे यूज करना चाहिए, ऐसे चार्ज करना चाहिए, ऐसे डिस्चार्ज करना चाहिए। वो मैकेनिज्म बता देता है और वो उसका वो कैलकुलेट अपने बुक में डाल देता है। कितने लोगों ने एप्पल का बुक देखा? एप्पल को कैसे मालूम चलता है कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल एमिशन ऑफ मोबाइल फोन? आपके मोबाइल फोन का व्हाट इज द लाइफ साइकिल एमिशन, टोटल एमिशन कैसे मालूम चलता है? उसको ये मालूम करना, एज्यूम करता है कि कितना साइकिल बैटरी चार्ज होएगी। मजर ने किया था ना केस स्टडी, कितना साइकिल वो बैटरी चार्ज हो सकती है, वो नंबर वो लेता है, क्योंकि वो उसका एसओपी है। ही नोज कि हाउ मेनी टाइम्स स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आई कैन डू, ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, ऑल दैट इज कैलकुलेटेड एंड गिवन। वो उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ चलता है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उस पर लगाते हैं और तब उसका वो कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली इन एम्प्लॉय कम्यूट, इफ यू हैव एसओपी, किलोमीटर से आप एसओपी लगा सकते हो कि अगर 5 किलोमीटर से आ रहा है तो वो बंदा ऑटो से आ रहा है, अगर 20 किलोमीटर से आ रहा है तो वो बंदा ट्रेन से आ रहा है, अगर 50 किलोमीटर आ रहा है तो हवाई जहाज से आ रहा है। मतलब ऐसा एसओपी आप लगा लो। और पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ा चैलेंज आजकल ये भी है, बहुत लोग फ्लाइट मोड में है, उसको 2 वीक ऑफिस में काम करना है, 2 वीक उसको घर में रहना है। तो वो क्या करता है, 2 वीक गांव में रहता है, ठीक है। और ये आपको मजाक लग रहा होगा बट दिस इज अ रियलिटी। आई नो सेवरल पीपल, अब तो सब 4 दिन 5 दिन हो गया है कि आपको कंपलसरी ऑफिस में आना है, तो दे हैव शिफ्टेड टू बैंगलोर। अदरवाइज दे यूज्ड टू लिव इन हैदराबाद, और फ्लाइट लेके आते थे, ऑफिस अटेंड करते थे 1 वीक और फिर फ्लाइट लेके घर, 4 वीक, फिर वो 3 वीक एंजॉय कर रहे हैं घर पे, गांव पे कोडिंग का काम। ये फैक्ट है। एक उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे मिला था, कितने लोगों ने देखा है कि एक मलेशिया में वुमेन है, इंडियन वुमेन, जो जी सर। ट्रैवल करती है, यस, ट्रैवल ये करती है। एयर एशिया में एयर ट्रैवल कर। एशिया की एम्प्लॉय है, राइट? बट दैट इज ट्रैवलिंग हाउ, इज चीपर देन द रेजिडेंस। है ना? दैट इज हाँ। द डेडिकेशन लेवल, एंड दैट आल्सो हैज अ इमिशन, सो यू नीड टू कंसीडर दैट। क्लियर? तो एम्प्लॉय कम्यूट कवर हो गया। एनी डाउट? बट तो ये सर एसओपी जो आप कह रहे हैं विवेक जी, हाँ तो जी। ये मतलब वी अज्यूम एंड वी मेक इट बट नॉट नेसेसरली नो नो, एम्प्लॉयज विल बेस्ड ऑन द, फॉलो इट। अगेन आपको सर्वे कराना पड़ता है, एसओपी के लिए सर्वे होती है। जो यूनिलीवर ने डिसाइड किया कि हॉट वाटर ही लोग यूज कर रहे हैं उसको रिंस करने के लिए, वो सर्वे कराया होगा या उसके टेक्नोलॉजी में पाया गया होगा। तो वो मतलब आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू इट, बट बेस्ड ऑन योर कंपनीज ऑपरेशन यू नीड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एसओपी यू कैन क्रिएट फॉर दैट प्रोसेस। हाँ द डेट। is collected and based on that सैंपल साइज लेके data होता है। reviews done and then parameters and specifications are set. True. And then only you create that SOP and apply it for, and then again it's a dynamic document. SOP एक और लोग गलती करते हैं, जो मयूर जी मेरे को वाउच करेंगे। वो क्या करते हैं कि मैंने पॉलिसी बना दी, प्रोसीजर बना दी, अब 10 साल में रिलैक्स करूंगा, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट ईयर मयूर जी जाते हैं, फिर से फाड़ देते हैं, अरे आपका तो प्रोसेस ही चेंज हो गया। Always treat SOP as a dynamic document. Every year, go back to that document and update, change, and require, relinquish it. Bring a new one. Correct, Mayur ji? Will you agree with that? Perfect, sir. Right. हर It एक is by साल default have to be done. और लेकिन होता है क्या? कितनी कंपनी में आपने नहीं देखा है करते हर सर। एक साल चेंज हो रहा है? तो छूटते रहिए, एक बार बन गया। 3 इयर्स में रिविजिट होता है एसओपीज का। होना चाहिए, लेकिन करता है क्या? कोई बोलेगा ये पैसा कमाने के लिए मयूर बोल रहा है, इनको मेरा फिर से ये बनाना, पॉलिसी प्रोसीजर बनाने का है। वो ट्रस्ट डॉक्यूमेंट बनने के बाद वो क्लोज करके रख देते हैं, कभी फिर ओपन भी नहीं बोलते करते। नहीं है। ट्रू, दैट्स अनदर पेन, राइट श्रद्धा? तो ये बहुत बोलना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट वंस यू हैव डिसाइडेड आइदर ऑफ दीज 3 मेथड, यू कैन डेफिनेटली डिप्लॉय एंड कम आउट विद द सिचुएशन विच स्मृति इज हाईलाइटिंग। ठीक है, वो एक बार करना पड़ेगा। हाँ, एक बार थोड़ा सा आपको एफर्ट लगेगा, जैसे इन्होंने बिल कर वगैरह ड्राइंग किया एंड कैलकुलेट किया। अब हम आते हैं अजय जी के क्वेश्चन पे, बिफोर वी गो टू अब्दुल राज। बोलिए। थैंक यू सर। सो आप ये सर आपने कब दिया था ये बैटरी वाला, जो मजहर जी ने आप बताया कि केस स्टडी किया था? ये देखिए, कहाँ हो आप अजय? एक्चुअली सर वो आईफोन 14 प्रो का एक लेटेस्ट डेटा आया है कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम 65 kg CO2 टू 110 kg CO2 होता है ऐसा। अब अजय जी, इन्होंने वॉलंटरी करी है वो काम, दोनों ने, अच्छा, और ओके। दोनों ने ग्रुप में डाला है। ऐसा नहीं कि वो ओके। अपने पास ही रखा है, ये लोग ठीक ऐसे है। नहीं है कि अपने पास रख रहे हैं, अगर लोगों को चाहिए तो शेयर कर रहे हो। और
और वॉलेंट्री एक किया था ऐसे, वो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट था। विच प्रोजेक्ट यू हैव डन मजर, दैट एप्पल का रिपोर्ट का फाइंडिंग? आई थिंक इट वाज बाउंड्री सेटिंग, करेक्ट? एप्पल का नहीं सर, वो आरसीसी ये वो आरसीसी वाला बताना था रिपोर्ट में। प्रिंसिपल को सेग्रीगेट करने के लिए। हाँ, तो देयर ही हैज रेफर्ड दैट डॉक्यूमेंट, एंड इन दैट डॉक्यूमेंट ऑल दिस आर देयर। गॉट इट। और ठीक सर है। ये जो स्मृति जी ने जस्ट डिस्कस किया कि इतना हाई लेवल पे इतना डिटेल, उतना सर इंडिया में कहाँ किसी कंपनी में भी हो नहीं रहा नहीं, है। अब अगर स्मृति कर रही है तो मतलब हर एक कोई कर रहा होगा भाई। पूछो आप, स्मृति बाहर की कंपनी के लिए कर रही थी कि इंडिया की सर कंपनी के ये लिए? मैं 2013 से कर रही थी। सुन लिया आपने ओके। अजय जी, जब लोगों ने सुना नहीं था कि सस्टेनेबिलिटी वर्ड। अजय जी, आप तो अभी ये स्मृति मैम जो बता रही हैं वो सिर्फ कम्यूटिंग वाला पार्ट बताएं। उसका जो ओके। बिल्डिंग डिजाइन होता है वो लोकेशन सब कुछ देख के यस, कि कम से कम एमिशन हो। मतलब इवन जो हम्म। लोग वॉक करेंगे, बाजू में पार्क होगा, करेक्ट। मेडिसिन का शॉप हाँ, होगा, जिम एनक्रोचमेंट होगा, वो एवरीथिंग। सब चीजों में ध्यान रखते हैं कि एमिशन इनफैक्ट मिनिमम होना चाहिए। बायोफिलिक डिजाइन का भी कुछ है करेक्ट उसमें, करेक्ट। अर्गोनॉमिक्स का है कुछ। मैंने सिर्फ कम्यूटेशन का बताया यस क्योंकि यस, वो उसमें मेजर फिर वो कंपोनेंट्स अर्बन में था। हीट आइलैंड का भी स्टडी करते हैं कि बिल्डिंग में अजय जी, टेम्परेचर कम हो बहुत ऐसे। बहुत डिटेल्ड है, मतलब सर, हमको लग रहा है यस। कि सर के जाने के बाद भी आप लोग प्लीज थोड़ा बहुत दो चार क्लास ले लीजिएगा अजय जी, सर छत्तीसगढ़ इतना में, डिटेल। बस्तर एक में। जस्ट वन इनपुट हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8:30 को मेरी एक कॉल है ऑफिस से, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन पॉइंट यहाँ पे। हमारे एमिशंस मतलब जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रही थी वो इंडिया का फर्स्ट यूएसजीबीसी प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग था अंडर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कैटेगरी। ओके। तो आपकी डिफरेंट उसमें कैटेगरी। हाँ, क्योंकि लीड सर्टिफाइड तो आईटीसी होटल्स भी है, बट करेक्ट। उनकी कैटेगरी अलग है। सो हमारे जो एमिशंस थे बिकॉज ऑफ रेट्रोफिटिंग, क्योंकि वो स्क्रैच से डिजाइन नहीं हुआ था, सो एमिशंस थे वो हमने कर्ब करने के लिए एक वहाँ पे कार्बन ऑफसेटिंग सेंटर बनाया था। रूफटॉप पे हमने एक पूरा एक ग्रीन हाउस डेवलप किया था। सो उससे हमने ये किया था कि जितने भी इंडोर प्लांटर्स है, जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांटर्स है, उनको हमने यूज किया था। इससे हमारे तीन बेसिक पर्पस रिजॉल्व होते थे। एक तो हमारा जो ग्रीन हाउस के अंदर जितने भी प्लांट्स थे उसके वजह से टेम्परेचर में हमारा डिक्रीज हो गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स होने की वजह से ऑटोमेटिकली उसका एटमॉस्फेरिक हो। उसी को हम डक्ट के थ्रू रिक्वायरमेंट फॉर एच परफॉर्मेंस बाय 2 डिग्रीज डिक्रीज हो गया था। तो उसका जो, अगर हमारा मान लीजिए एक फैसिलिटी में बिल आता था 10 लाख के आसपास मिनिमम, तो वहां पे हमारा बिल आने लगा अराउंड 4 lakhs 5 lakhs एनर्जी बिल्स। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि हम लोग एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स यूज करते थे, तो एमिशंस जैसे कि वीओसीज वगैरह जो इंडोर ज्यादा होता है, तो वीओसीज एंड टी वीओसीज, इसको हम लोग बहुत अच्छे से कर्ब करने की कोशिश, मतलब काफी हद तक हमने उसको नलीफाई किया था। ये हमने एक फिलिप्स शार्प के एयर प्यूरिफायर के साथ टाइप करके हमने वो टेस्टिंग भी करी थी। तो रेगुलर ऑडिट्स भी होते थे। बट व्हाट अबाउट द एम्बियंट, जो अभी आप हाईलाइट कर रहे थे कि बाहर एनक्रोचमेंट में भी कैसे होगा, क्या कैसे किस तरह से मेंटेनेंस होता है, क्योंकि ये तो बिल्डिंग के अंदर का परफॉर्मेंस है। तो बाहर के जो जितने है एंटिटीज, उसको कैसे हम पोल्यूटेंट्स या एंटिटीज कुछ भी, उसको हम कैसे कर्ब करें। तो उसके लिए भी हमने काफी सारे कार्बन ऑफसेटिंग सिस्टम्स बना के रखे थे, जैसे कि हमने खुद ही वॉलंटरीली वहाँ पे प्लांटेशन करा के सर्वाइवल रेट को ट्रैक करके, जैसे कि लोग एक बार ही ट्री प्लांट मतलब सैपलिंग प्लांटेशन करके भूल जाते कि हाँ हमने तो कर दिया हो गया। बट यूजुअली 100% में से अगर आपने 100 प्लांट्स किया है प्लांट, तो उसमें से ओनली 60% सर्वाइव करते हैं। तो हम लोग उसका रिप्लांटेशन करके भी वी वर ट्राइंग टू मेंटेन दैट एंटायर थिंग, जो मतलब हर वो चीज जो इंडेक्स होता था फॉर जीआरआई एंड यूएसजीबीसी। तो एवरीथिंग वाज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड इंटरलिंक्ड था। तो उसकी वजह से इंटरडिपेंडेंट एसओपीज हमारे बहुत सारे क्रिएट भी हो गए थे उसको लेके, क्योंकि एक एफएनबी फैसिलिटी भी थी हमारे उसमें, उससे एमिशंस होते थे। सो लेकिन ये ग्रीन हाउस के थ्रू हमने काफी एमिशन मैनेज किया था। So,
अब सब आदमी 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सबमिट कर देना, आपको UGBSC में भी SBC में भी ट्रेनिंग मिल गई। ये इसी में पॉसिबल है, या ESG नहीं नहीं सर, इसके कार्बन अकाउंटिंग में ही पॉसिबल है और कहीं नहीं है। अब ठीक है। जैसे यूएई में उसको सस्टेनेबिलिटी को इस्तीदामा बोलते हैं। तो अबू Correct. धाबी का एक एक्शन प्लान है, उसमें भी वो बिल्डिंग्स जब डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करना है। इवन कि बिल्डिंग में CO2 सेंसर भी लगाना है, पूरा वाटर मैनेजमेंट का प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, इवन कि पार्किंग में भी CO2 सेंसर्स लगना चाहिए। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे फॉलो करते हैं। इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, बट बस यहाँ भी अब गाड़ी पकड़ रहा है सर। नहीं नहीं सर, जी, अभी जैसे मैडम ने बताया था IGBC, now that is has taken shape in India at a very good level. वेरी गुड लेवल आई टुडे। I'm also कंसल्टेंट इन IGBC। अरे क्या बात है। और मालूम है आपको सबसे बड़ी बात, आज के डेट में US के बाद अगर कोई कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा लीड बिल्डिंग का काम चल रहा है, अप्रूवल नहीं मिली है लेकिन सबसे ज्यादा काम चल रहा है, वो इंडिया है, और आप अभी US अभी के मैंने बाद। ग्रुप में शेयर किया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक बिल्डिंग विच इज गोइंग मतलब वन द मेंटेनेंस मेकिंग ऑफ हाउसेज विथ जीरो एमिशन फैक्टर्स। परफेक्ट। यार अब क्या करेंगे, अब अजय जी ने बेनिफिट तो ले लिया, तो अजय जी सबसे ज्यादा ना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। संदीप को मैंने अभी कॉल कर दिया है, वो फोन करके सबसे तो 2,000 रुपये क्रैश कोर्स के लिए लेने मैं वाला है। जो आपको क्रैश कोर्स मिला है ना US GBC और IGBC का, राइट, उसके आप अलग से पेमेंट करें। चलो so नेक्स्ट वन, my my कैटेगरी। my first favorite was till today Majhar ji. Now my first favorite is Smriti ji now from today on. You know. क्रैश कोर्स दे दिया God. उन्होंने, राइट। गुड। Thank you. Thank you. Thank you very much, Smriti. I appreciate that. Okay, now let's go to category number 8, upstream lease assets. So clarity आपको सबको हो गई 7 तक। Upstream lease asset is same like transport. So any consumption on HVAC system, right? Heating, cooling system in the building or warehouses which has been leased. So building, if you are leasing for your operation purposes also will come here. Clear? And upstream because it is still before the gate, billing is happening. Of course, it is happening for the gate, but if it is before the gate, it will be counted here. If it is a leasing happening for the operation, then of course it will not be part of lease assets emission. So what ought to DG नहीं include? आएगा ना सर इसमें? Sorry, DG sorry, sorry. DG नहीं, DG सेट अगर वो लीज में है, लीज ओके बिल्डिंग में अगर DG सेट है, तो उसका पार्ट हो गया, आपका पार्ट थोड़ी है। आप ओन नहीं करते हो DG, तो स्कोप 1 में नहीं आएगा, वो राइट राइट स्कोप 3 में ही। गॉट इट सर गॉट इट। अब यहां पे भी एसेट स्पेसिफिक है, लेसर डेटा स्पेसिफिक है, एंड इंटेंसिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 डिफरेंट मॉडल्स आर देयर। एसेट बेस्ड क्या है, एसेट स्पेसिफिक क्या है, कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द इमिशन इफ यू कैन कलेक्ट, राइट। सो लीज डेटा अगर आपका किसी बिल्डिंग से आ रहा है, वेयर हाउस से आ रहा है, या वेयर हाउस के रिलेटेड लीज एसेट्स हैं, तो उन सब का डेटा इज एसेट स्पेसिफिक डेटा। फर्नीचर आपने लीज किया हुआ है, राइट, इफ कहीं भी आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो तो लीज एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अगर वो कैपिटल गुड के लिए नहीं है, मतलब और कहीं नहीं रिकॉर्ड कर सकते, मतलब कैपिटल गुड में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब सोफा सेट तो ऑफ कोर्स आपका कैपिटल गुड में जाएगा, क्योंकि इट इज यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस, और सीटिंग चेयर्स, क्यूबिकल्स। बट हियर those assets which are not being accounted anywhere else will be recorded here, specifically mostly warehouses people record here. सेकेंड इज द लेसर स्पेसिफिक डेटा। लेसर ने आपको प्रोवाइड कर दिया कि मेरा इतना फ्यूजिटिव इमिशन हुआ है, मेरा इतने हाइड्रेंट्स आपके लिए लगे हुए हैं जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, आपको केवल यूज करना है और पेमेंट आपका रेंट करना है। इन दैट केस ही विल प्रोवाइड यू द एनर्जी कंजम्पशन, ही विल प्रोवाइड यू द फ्यूजिटिव इमिशन लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स, HAVAC का इमिशन एक्सेट्रा, यू नीड टू रिकॉर्ड। एंड यहाँ पे अगेन यू नीड टू टॉक टू अब्दुल अमजद और स्मृति, या एंड टेल देम दैट US बिल्डिंग का सेंसस बताओ, IGBC में कैसे होगा वो बताओ, और वो नंबर आप अपने डेटा में इंक्लूड कर लोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंटेंसिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हियर जनरली फॉर कूलिंग वेयर हाउसेस वेयर दे आर गिविंग यू द कूलिंग एज वेल, या कोल्ड स्टोरेज इफ यू नो, सो वहां पे पर मीटर क्यूब
या क्योंकि हाइट भी इंपॉर्टेंट है कूलिंग के लिए। तो इस पर मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर क्यूब का डेटा, फीट क्यूब, मीटर क्यूब, all that data you will be taking, multiplying with the emission factor based on the intensity, what kind of temperature you are maintaining in that premise. And of course, the accuracy is very high here based on the intensity based. Why? Because you know exactly what kind of cooling system in that meter Q has been used. Hence, you will have the most accurate data. Least accurate will be asset specific. With that, we सर वो have एक बुक बोला था आपने सर, ईएचएस से ईएसजी का, वो थोड़ा हम लोग को मिला नहीं सर। EHS से ESG का। हाँ, ईएसजी, वो केवल मैट्रिसेस हैं उसमें। हाँ EHS वही वही सर, ESG के वही केवल EHS वाले मैट्रिसेस हैं कि क्या हेल्थ एंड सेफ्टी वाले, जो ESG वाले भी यूज। यूज करेंगे। यस यस, कल वही थोड़ा था याद बस। दिलाइएगा, क्लास में प्लीज दिलाते हैं, प्लीज, मैं थैंक फिर यू सर, थैंक यू। ऑफिस में रहूंगा, याद दिलाएंगे तो आई विल आस्क समबडी टू सेंड यू, इट्स देयर। ओके, नाउ वो फार्मूलाज हैं मोस्टली, उसमें फार्मूला है कौन कौन से इंजरी के लिए क्या यूज होता है एक्सेट्रा, जो कि ESG वाले भी कंसिडर करना है। नाउ इज माई क्विज इज विजिबल? ओके, ये भी वैसा ही है। लेट्स ट्राई इफ वी कैन, without options, if we can answer, let's try it. Otherwise, we will skip those questions. Is my screen visible? नो। No. ओके। Yeah. तो क्वेश्चन और ऑप्शन भी आप बता दो, हम चैट बॉक्स में डालते जाएंगे। हाँ नहीं, ऑप्शंस नहीं है उसमें, ये प्रॉब्लम है। दैट्स द चैलेंज, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डजंट वर्क, बट यू कैन सी दिस। आई होप इट इज विजिबल। Hmm. Okay. Slides, PPT is Yeah. So which method estimation emission from purchase good and service using a specific supply data is used? Chat box में answers please. अजय जी, आपने ऑफिस स्ट्रीम ट्रांसफर। क्वेश्चन थोड़ा बाउंस चला गया सर, मैं अरे मैं बाउंस सॉरी कैसे बोल रहा गया वही? हूँ। नहीं नहीं, वो समझना होगा ना। देखिए, यस। लाइटली लेंगे तो नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए क्यों बाउंस किया, वाई डिड यू अंडरस्टूड अप स्ट्रीम, तो वो फिर नहीं होगा ना मिस्टेक, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। आपको क्यों लगा कि अप स्ट्रीम है? मेथड्स मैं भूल गया हूँ, किस टाइप का मेथड्स। 15 मेथड्स हैं सिंपल। अच्छा, आप ओके ओके, आए हो आज सेशन में? मैं लेट आया हूँ आप सर। सिंध आंसर को पकड़ लो। ओके, हाँ वो बहुत। सर बोलना चाह रहे थे हाँ। एक बार कि मैं लेट आया हूँ, मैं समझ गया, वो बोल ही दिए सर मौका लेके एकदम। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैंने बोला ही नहीं है। मैं लेट आप आया था जबरदस्त। सर, इसलिए मैं आप आंसर नहीं आप दे पा रहा सुनने से था। पहले कास्ट कर लेते हो। और कैटेगरी उल्टा देखिए, वन। घुमा के मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मतलब घुमा के बोल रहे हैं कि सर आपको डालना था, इसलिए आपने ये रेज किया। आंसर बहुत गलत दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट ये कर रहा हूँ कि आपने या तो वीडियो वॉच नहीं किया है जहाँ मैं कैटेगरी। रिवाइज कर लूंगा सर कल सुबह में। हाँ, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो सारे पे है, पूरा आप स्ट्रीम ऑल 8 पे है, ठीक है। और वो भी आई आपने विल नहीं रिवाइज इट। attempt किया है अभी तक, वो 30 मिनट का जो स्कोप 3 का वो कर टेस्ट। लिया है सर, उसमें 2-3 क्वेश्चन डाउट था, मैं कल पूछूंगा अगर आप टाइम देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1-2 मिनट का था क्वेश्चन, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए, मुझे एक कॉल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गो अहेड एंड आंसर इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, बोलिए। ये भी क्वेश्चन बाउंस गया मेरे से। एवरेज डाटा मेथड एस्टिमेट एमिशन फॉर
क्वेश्चन तो क्वेश्चन है सर, मुझे आंसर भी नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग कैसे मास बेस्ड कैटेगरी वन यूजिंग इंडस्ट्री एवरेज एक्टिविटी Can somebody explain, please, to him? मजहर जी आप ही बता दो। अजय जी, हमने परसों किया था ना, जब एवरेज डेटा लिया था, याद होगा आपको, माइल्स पर गैलन के लिए। राइट राइट एकदम। राइट राइट। तो जो डेटा लिया था ना एवरेज का, हम्म। ना एक्सट्रीम ना लो, उसका एक एवरेज निकला था 7.5। राइट तो राइट वो राइट। एवरेज लिया था शायद। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है मेरी। अब इसका वैलिडेशन सही देंगे या ना, तो हम जस्ट लोग ओके, देंगे। सो देर आर थ्री टाइप्स, वन इज एवरेज, एक स्पेसिफिक डाटा था जो सप्लायर से हमको हाँ लेना हाँ रहता है। हाँ ओके, आई हाँ। गॉट इट यस, गॉट इट जब गॉट इट गॉट इट। सप्लायर स्पेसिफिक एक्यूरेट होता है। हाँ, नहीं मुझे अब समझ में आने लगा किस टाइप का आंसर है। थैंक जी। यू थैंक यू। Please answer the third one, everyone. बट ये सेकंड वाले का आंसर क्या है एग्जैक्टली? वो एवरेज वैल्यू लेते हैं ना मैम, तो वो एवरेज डेटा मेथड भी वो बोल सकते हैं उसको, या एवरेज वैल्यू जो एमिशन के लिए हम लोग लिया था ना, माइल्स पर हाँ, गैलन, एवरेज वैल्यू लिया था, सो कैन वी से एवरेज वैल्यू मास बेस्ड या बिकॉज एवरेज डेटा मेथड या एवरेज वैल्यू मेथड, और इंडस्ट्री एवरेज यू कैन। इंडस्ट्री एवरेज। बट अब्दुल जी, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी लिखा था एवरेज मेथड। हाँ, वही मुझे कैसे कंफ्यूजन हो रहा सिंपल है। होगा? क्वेश्चन मतलब में उसका ऑलरेडी क्वेश्चन ये था कि एवरेज डेटा कैसे लेता है वो। कैसे करेंगे? यस। So specific industries have their specific average data, I think. ये वो नहीं होगा जो सर ने अभी बताया, 3 पार्ट लॉग बुक्स, जियो स्पेसिफिक स्टडी एंड एसटीपी। ये मुझे थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन 2 में। आपको थोड़ा है, मैं तो आप बता ही नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ। एमिशन फ्रॉम मशीन यूज्ड इन ऑपरेशंस, मयूर जी ने डाला है मशीन्स यूज्ड इन ऑपरेशन। ये किसका आंसर है मयूर जी, थर्ड का? थर्ड थर्ड। ओके, ये वेयर हाउस नहीं होगा इसका आंसर? जो हम एसेट वगैरह वेयर हाउस में रखते हैं, दैट्स आल्सो कम्स अंडर द स्कोप 3 ना। हाँ सही है। मैं सही पूछ रहा हूँ वैसे ही मत बता देना आप सही है। emission from machine used in operations, ओके। वेराज अगर खुद का है तो नहीं, लेकिन मशीन यूज्ड इन ऑपरेशन अगर हम emission करते हैं तो वो तो नहीं, खुद ये का थर्ड रहेगा वाला ना, तो वो क्वेश्चन तो में भी स्कोप है। 3 होगा नहीं मयूर जी। मुझे थोड़ा डाउट, मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ और कुछ नहीं। मशीनरी बिल्डिंग, वैद्यनाथन जी ने मशीनरी बिल्डिंग्स, वो भी तो अपना खुद का है ना, तो एक बिल्डिंग मशीनरी तो अपना खुद का रहता है ना। अगर खुद का अगर हमने परचेज किया है, दैट विल कम्स अंडर द स्कोप 1 आई थिंक। पार्थ ने डाला फिजिकल एसेट्स, सर चलेगा इसीलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल एसेट्स यूज्ड इन। So, as per GSG protocol, Scope 3 Category 2, that Category 2 covers capital goods. नहीं, लेकिन पार्थ जी, ये फिजिकल एसेट्स इन Uh-huh. यूज्ड इन प्रोडक्शंस, फिजिकल एसेट्स, Yes. वो तो हमारे लिए तो स्कोप 1 ही रहेगा ना। उसका एमिशन, वो तो जिस मैन्युफैक्चरर ने हमको भेजा है जो एसेट्स जो भी मशीनरी, वो भले ही स्कोप 3 में काउंट किया होगा कि हाँ हम 1 साल का यूज करेंगे तो उसका इतना डिप्रिसिएशन होगा, व्हाट इज मीन, उस टाइप से मैं सोच रहा था। Okay. अपस्ट्रीम के लिए आएगा ना? किसके लिए मजहर अपस्ट्रीम जी? अपस्ट्रीम Upstream. एसेट्स Yeah, yeah, यूज्ड yeah. बाय अपस्ट्रीम एसेट्स आर यूज्ड बाय एसेट्स। अपस्ट्रीम। हाँ ये आ सकता है, राइट, आई गॉट इट नाउ, ये आ सकता है। दीपा जी ने डाला है मशीन्स इक्विपमेंट, मशीनरी बिल्डिंग व्हीकल्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। If we are owning those assets, that will come under scope 1. If these are assets belongs to our suppliers or someone else, that upstream, that will maybe.
Yes, अप upstream स्ट्रीम only. के लिए होगा तो कोई भी गुड्स वो तो आएगा ही आएगा स्कोप 3 में, वो तो नो डाउट। Okay, what was the question here on the question number 2? Can somebody repeat it for me? Or is it solved? वो हम पर हमें कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बोलिए? तो What इसमें अभी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज कि एवरेज डेटा मेथड में how are we estimating? Basically, methodology is considered, which is actually average. So I think maybe it's about the how the data is captured. Is it like that? correct, absolutely correct. So Absolutely. what will be the answer? Like mass-based, industry-specific mass-based data? It is for purchase good, right? You are getting नहीं नहीं सर, पिछला सवाल था उसका एवरेज डेटा, हाँ, यही वो सवाल एवरेज डाटा एमिशन फैक्टर, यही उसका आंसर है पिछले वाले का, एवरेज डाटा एमिशन फैक्टर। yes, that is the means how does average data method is estimate emissions for purchase good. You take average data from the industry, from mass, put it in a emission factor document and use it. दैट इज कंफ्यूजन स्पेसिफिक कहाँ है मेरे को अभी एवरेज। समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, नहीं, इट इसका इज द आंसर इजीएस्ट कैसे क्वेश्चन लिखना है नाउ। वही पूछना। क्वेश्चन में ही आंसर है ना ये। नहीं, सबने अलग अलग आंसर दिया अगर आप देखें। How क्वेश्चन does में ही the उसका आंसर सर है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर सर बताइए, ज्योति तब थोड़ा मैम ने बहुत प्रोब समझ में आ करके जाए। निकाल दिया ऑलरेडी पहले। क्या किया ज्योति मैम average ने? data emission factor is used? Average data emission factor is used, which is calculated based on the industry data, industry No, averages. industry average is right. Okay. Perfect. कोई confusion है इसमें अभी? नहीं, Okay, good. Now, next one. But which method is a average data emission factors? Third one, you guys have come up with, somebody has come up with some answers, right? Yes. Let me see the answers now. Okay, I think we need to switch to manual mode, otherwise it will be difficult to ask questions. Assets, absolutely upstream only, correct? It has to be upstream. Machinery, building, long-term asset, which generates value over a period of time, specifically 365 days. Clear? Anything beyond that, if somebody is creating, will be part of this. Next question. Which equations are correct? Oh, sorry. I need to go to now next slide. I have to cover at least downstream today, so tomorrow we can start with. Which emissions are accounted for scope 1 and 2 related to capital goods? Unfortunately, all. Stoichiometric based, okay. Stochastic तो सुना था, stoichiometric I have not heard, Dr. HR. What is that? Did you guys got this question? Because option is not there, so there might be some confusion. If you want, I can explain. Sir, if you can Please explain, explain. sir. Yes. Yes, sir. So look, what it is asking, there is two type of emission in capital good. One is a scope 3 emission, which everybody knows, which is that how much emission has been made to manufacture this machine, right? How much emission has been made to manufacture this machine, which can be your iPhone, iPad, laptop, machines. But it is asking a different question. It is saying that which emissions are accounted in scope 1 and 2 for capital goods. अभी आपने देखा है इसको? I think स्कोप 1 होगा सर। आई गॉट इट क्वेश्चन, आई गॉट क्वेश्चंस। नहीं, क्या क्या एमिशन का नाम बताइए सर। सर स्कोप 1 में जो आएगा वो डायरेक्ट फ्यूल Mobile, कंजम्पशन। mobile phone.
या फ्यूजिटिव चार्ज fuel एमिशन consumption करूंगा, एंड होगा। प्रोसेस एमिशन, वो तीन अगर आएंगे। चार्ज हाँ करूंगा तो ये कैपिटल गुड का स्कोप 2 इमिशन हो गया, कैपिटल गुड यस हो गया स्कोप 3 में। यस सर। 65 kg, 65 kg you said, right? Tons of carbon dioxide emission. 65 to 110 kg. 110. But when I'm charging it, maybe 1 kg per day, यस यस यस। right? That's the question. Now let's और not go दूसरा पार्ट जो था इसका स्कोप 2 का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह जैसे। full charging. Yes, यस सर। charging is that one. Now, यस category 9 is downstream transportation, which is exactly same as upstream transportation. So methods are also same. Clear? There are some calculations, but it is same. Fuel based, distance based, and spend based. किसने किसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है डेफ्रा वाली? नहीं देखी है तो बता देना आप लोग। सर, आई डिडंट वॉच। ओके, सो प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब फिर आपको उसको देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो टुडे इज द लास्ट डे व्हेन यू शुड वॉच, ओके, बिकॉज दैट कवर्स दिस पॉइंट, स्पेसिफिकली दिस पॉइंट, फ्यूल बेस्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है, स्पेंड बेस्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं फिर वो टाइम वेस्ट उस पर नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट। वी हैव डन अ बिग डिबेट। कितने लोगों को डिबेट याद है मैकडोनल्ड वाला? प्रोसेसिंग ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट मैकडोनल्ड में जो इमिशन होती है फ्रेंचाइजी के अंदर, कौन सी इमिशन है वो? कोई था उस बैच में? फ्रेंचाइजी वाला स्कोप 3 में था ना? बिल्कुल, स्कोप 3 यहीं पे होता है वो। फ्रेंचाइजी एक एमिशन अलग है, लेकिन अगर आप जो पैटीज हैं मैकडोनल्ड के और उसको वार्म कर रहे हो, उसको या फ्रेंच फ्राइज को आप फ्राई कर रहे हो, तो उसको यू इट रिक्वायर्स अ फायर पावर, राइट? It requires a firepower, it requires a emission, and that emission is processing of sold product. क्योंकि till the time burger is made, McDonald will not have earning. Once burger is made, then only they will have a real earning. Per burger, they charge 10%, 12%, or 15%. That 15% requires this emission as well, which is happening one step before the burger is made, which is frying of those product, any processing which you do on the, so end product is yet not done. In between there is a non-owned product by you, non-owned emission by you, which is McDonald का non-owned emission क्या है? फ्रेंचाइजी का emission. Now फ्रेंचाइजी में भी अगर सोल्ड प्रोडक्ट के लिए कोई emission हो रहा है तो वो emission will be separated out and will be accounted under scope 3 category number 10 by McDonald. कितने लोगों को क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन है? सर एक बार और समझाइए ना प्लीज। फिर से। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट आई वांट। व्हेन आई आस्क, नहीं समझ में आया पूछो, अगर आप चुप रह जाओगे तो फायदा क्या है इस क्लास का? सो ही इज आस्किंग मी टू एक्सप्लेन इट वंस मोर। व्हाट ही इज आस्किंग मी टू एक्सप्लेन इज दैट हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। सो आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड, कितने लोगों को मालूम है कि दे हैव अ बिजनेस विच इज अ फ्रेंचाइजी बिजनेस? क्लियर? So they are sitting in USA. The company which own franchisee here is a different company. Clear? Now, franchisee emissions also I will explain now, so I will not do 14, 15. Franchisee emission is those emission which is emission done by the franchisee owner in that outlet. तो आप लोग जो आउटलेट पे जाते हैं, it is not owned by McDonald. It is not even controlled by McDonald on financial ground. बट इट इज ओन्ड बाय ऑपरेशनल ग्राउंड, राइट? वो लोग एसओपी भेज देते हैं, वो लोग ड्रेस का कोड भेजते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि बाहर एक आदमी बैठा होना चाहिए हाथ ऐसे फैला के, वो सारा कुछ वो भेजते हैं, टेबल चेयर डिजाइन एवरीथिंग। सो ऑपरेशनल कंट्रोल है उनके पास। हेंस दे रिपोर्ट इमिशंस, हेंस दे रिपोर्ट द इमिशन, बट ओनली अंडर स्कोप 3 इन फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी का इमिशन गेस करो आप लोग, क्या क्या हो सकता है फ्रेंचाइजी का इमिशन? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैटेगरी 10, वी आर टॉकिंग अबाउट franchisee emission overall. Dr. Deepa, tell me which emission will be under franchisee emission? Pardon me? Which Which? emission will be recorded under franchisee emission? What kind of emission they might be doing? जैसे निट हुआ, एप्टेक हुआ, मैकडोनल्ड हुआ, तो क्या हम्म कैपिटल इमिशन गुड आएगा। फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड करता होगा? कौन से टाइप का emission you are asking यस, for? यस। Or in which scope you are asking?
क्या फॉर फ्रेंचाइजी इट विल बी स्कोप 1। स्कोप? हाँ, उसके लिए तो स्कोप 1 ही होगा ना, जो उसके प्रीमाइस में इमिशन हो रहा है वो उसका इमिशन या है। एग्जैक्ट। बट मेरे लिए वो फ्रेंचाइजी का इमिशन विल बी 3 इमिशन, सो व्हाट ऑल दैट स्कोप 3 इमिशन विल कम अंडर फ्रेंचाइजी इमिशन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मे बी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एब्सोल्युटली काइंड ऑफ। करेक्ट। स्कोप 2 उसके लिए, या मेरे लिए स्कोप 3 है, राइट। या करेक्ट। बल्ब ये सब जो यूज कर रहा है, क्लियर, या ऑल दोस, whatever is they are using for Fuel भी their होगा as an ना, instrument. करेक्ट। because the heating, frying, so like हीटिंग फ्राइंग वो भी इमिशन उनका स्कोप 3 इमिशन है। Yes, लेकिन sir. चैलेंज ये है कि ये फ्रेंचाइजी में रिकॉर्ड होगा कि नहीं विल बी डिसाइडेड बाय वेदर आई ओन दैट प्रोसेस सेपरेटली और नॉट। जो हीटिंग कूलिंग भी है वो स्कोप 3 मिशन ही है, लेकिन स्कोप 3 कैटेगरी 10 के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? कि ये प्रोसेस के बिना अगर फ्रेंचाइजी का जो फ्रेंचाइजी दे रहा है उसका ही पैसे नहीं बन रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, so much more. मैकडोनल्ड के पैसे कब बनते हैं? जब फ्रेंचाइजी ओनर सेल्स दैट बर्गर, Hmm. दे टेक अ परसेंटेज, राइट। रॉयल्टी बोलते हैं उसको, दे टेक अ परसेंटेज विच इज रॉयल्टी। अब बर्गर सेल कब होगा? जब पैटिस फ्राई होगी, विच इज स्कोप 1 इमिशन फॉर फ्रेंचाइजी का आदमी, फ्रेंचाइजी के लिए वो स्कोप 1 है। अब क्वेश्चन जो मैंने डॉक्टर दीपा से पूछा कि फ्रेंचाइजी का स्कोप 1 एंड 2 कब वो 14 नंबर होगा, कैटेगरी नंबर 14, और कब वो कैटेगरी नंबर 10 होगा, विल बी डिसाइडेड बाय द एसओपी ऑफ Yeah. द मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड को ये जानना है कैटेगरी 10 में कि मेरा जब सेल हो रहा है बर्गर, उसमें जो पैटिस बन रही है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो बनेगी क्या? बन सकती है क्या विदाउट No. लाइट? बन सकती है, पॉसिबल हो सकता है ना। मैं फ्यूल डीजी सेट पे चल, मैनुअल बर्निंग कर लो, माचिस जला जला के उसको बर्न करूं, ये मेरा चॉइस है ना, राइट। बट बंद हो जाएगा, पैटिस तो बन जाएगी। पैटिस बन जाएगी, सेल भी हो जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे। अगर वहां लाइटनिंग है तो अच्छा सेल होगा, ज्यादा लोग आएंगे। अगर वहां लाइटिंग बंद है तो कम लोग आएंगे, वही लोग आएंगे जिनको मालूम है ओपन है कि क्लोज है। थोड़ा सेंस कर रहा है आप लोगों को? तो ऐसे डिसीजन लेना है 10 और 14 में। 10 और 14 में थोड़ा का ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर वो मेरे प्रोसेस ऑफ सेल के बीच में है तो प्रोसेसिंग ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट है। पैटिस सेल के बीच में है कि लाइटिंग सेल के बीच में है, क्या से आपकी सेल नहीं होगी, ये सोचिए आप। बर्गर बिना लाइट के बिक सकता है? नहीं, अब बिना लाइट का बिक सकता है ना, लाइटिंग नहीं, वही तो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ थोड़ा। लॉजिकल नहीं ना सर। लॉजिकल क्यों नहीं है? अगर मान लो लाइट 2 मिनट के लिए बंद हो गई, भूख लगी है आपको, तो आप, और आप मैकडोनल्ड के एरिया में हो, आप खाओगे कि नहीं खाओगे? और होटल में होता है कि नहीं, हम लोग बैठे होते हैं, लाइट चली जाती है, बड़े बड़े होटल में होता है पॉसिबिलिटी। यार तो ऐसा थोड़ी हम भाग जाते हैं, वो लोग कैंडल लेके आ जाते हैं, आपके लिए कैंडल लाइट डिनर बना देते हैं उसको, बट खाते हो आप? कैंडल लाइट डिनर में तो रिक्वायरमेंट ही है ना कि कैंडल होना चाहिए, लाइट की जरूरत नहीं है। तो बिक रहा है कि नहीं उसका फूड? फूड बिक सकता है। हेंस, एंड इट इज नॉट ऑल्सो ऑफ कोर्स, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। ये प्रोसेस में भी होना चाहिए उनके, कि एक इन बिटवीन प्रोसेस पेंडिंग है जिसके बगैर सेल नहीं होगी। हेंस आप इस इमिशन को इसमें रिकॉर्ड करनी है, और वो प्रोसेस जो पार्ट है वो कैटेगरी 10 में अप्लाई होता है। तो गुड, अजय हैज आस्क्ड, बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस इफ ही हैज अंडरस्टूड। अजय, आपको पता चला मैं क्या बात कर रहा था? आई फुल्ली गॉट इट सर, गॉट चलिए, इट तो नाउ। आप एक्सप्लेन बैक कर दीजिए मुझे 2 सेकंड में, 2 लाइन में एक्सप्लेन बैक कर दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसिंग ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी नंबर 4 विच इज फ्रेंचाइजी? 2 वर्ड में बताइए। So processing of sold products is nothing but before before outing the product to the customers, whatever the emission is coming, it comes under the processing of sold product. बिल्कुल, उसकी वजह से सेल अगर रुकने वाला है तो वो प्रोसेसिंग ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट है। अगर Right. उसकी वजह से सेल नहीं रुक रहा है, अब मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं, डॉक्टर आई थिंक रिचा या दीपा ने दिया था आंसर, तो मैं उनसे पूछ रहा हूं। अगर मैंने लाइटिंग ऑन रखी है और मैं पैटीज ना गर्म करूं, मेरा बर्गर सेल होगा? मतलब तो एनिमल खाएगा, ऐसा नहीं कि वो भी कोई ना कोई होगा जो खा लेगा कच्चा भी, लेकिन पॉसिबल होगा डॉक्टर रिचा? नो सर।
No. यही आंसर है। समझ में आ गई अभी बात? अभी क्लैरिटी होगी बेटर, राइट? विदाउट लाइटिंग आई कैन स्टिल सेल द बर्गर, or with lighting I can't sell the burger if the processing of sold product is not done, that emission is not done. Are you with me everyone? किसी को अब कंफ्यूजन है? अभी भी पूछ लो, अभी पूछ लो, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और ये मैं तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी की वजह से। एक फ्री वाले क्लास में भी किया था और एक अभी भी कर रहा हूँ, और बीच में भी एक बार मैंने रेफर किया हुआ है जब ये इसको। सर 15% वाला क्या है, एक बार समझ में नहीं आया था। क्या 15%? 15% कुछ मैकडोनल्ड को जाता है, वो नहीं समझ में वो आया तो था। फ्रेंचाइजी रॉयल्टी की बात कर रहा था ना मैं। आप रॉयल्टी लेते होगे ना, जो आपका फ्रेंचाइजी होगा उससे, जो आपका तो सामान उसको 15% ही प्रॉफिट होता है मैकडोवेल को। एग्जाम्पल, मतलब अगर 100 रुपये का सामान बिका तो वो 15 लेता होगा, ऐसा? उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। वो जो है ना फ्रेंचाइजी ढूंढ लेता है, लेकिन वो बोलता है हम आपको पूरा मेनू का प्रोसीजर टेक्निक बताएंगे और बहुत जो भी पैसा बनाता प्रॉफिट है होगा जय जी। 50%